on freelancing. In this webinar, we shed some light on how we can all, especially students, can easily start freelancing and develop their digital skills for future profit. For this regard, we have invited Ms. Ikra Rai. She is doctor by profession who has completed her medical degree in 2020 and has more than 3 years of experience in freelancing. She has trained many number of batches of students for writing courses and awarded as a top-rated mentor by many digital skills academies. She has worked with many international brands like Goodfair, Mercy Cosmetic, and many more. She has also worked for many startups and software houses in Pakistan. Miss Ikra, now the platform is yours. You may begin. Thank you. Assalamualaikum. Thank you so much, Habiba. Can you guys hear me properly? Yes, ma'am. Everyone else, can you please let me know if you can hear me properly? Yes, Yes, ma'am. you are audible. You. Okay. That's great. Thank you so much for showing up, and thank you so much for your wait and for putting up with us. So, Habiba, can you please allow me to share my screen? Because I just can't. Give me a minute, ma'am. Sure. Thank you. Ma'am, you can share now. Yes, thank you so much. So, how are you all doing? कैसे हैं आप सब लोग? Until then, let me share my screen. Okay. Good. Okay, before I start, please let me know if there is any issue in hearing me out. अगर मेरी आवाज़ नहीं आ रही है या मेरी आवाज़ में कोई डिस्टॉर्शन है तो प्लीज़ लेट मी नो so that I can fix it before we begin. Please speak up loudly. Okay. Give me a minute. Is it fine now? Yes, it is. Okay, great. Okay, let me share my screen and we will begin right away. Okay. So can you see my screen? Yes, I can see it. Okay. Good. Okay, I welcome all of you to this session, which is Step into Freelancing, which is actually a very basic walkthrough. Because I know most of you are very new to it, or maybe you don't even know about it or have no idea about it. So we are going to, we are going to go through it in the very basic manner. मैंने कोई इसमें advanced level की चीज़ें ऐड नहीं की हैं, कुछ भी ऐसा ऐड नहीं किया, which will not be very understandable by all of you. So keeping in mind that many of you will be new to it or maybe have zero knowledge about it, I have kept it very simple, very basic, but yet comprehensive, जिससे आपको अच्छे से idea हो जाएगा that whatever things you need to do while becoming a freelancer. So I hope the session would be interactive and well paid off to you as well. I would be worth your time, and to make it even more interactive, I would
एक्चुअली रिक्वेस्ट कि काइंडली जब तक मैं प्रेजेंट कर रही हूँ तब तक आप लोग अपने माइक्स ऑफ रखें सो दैट हम पहले ही थोड़ा सा लेट हैं बट to save our times मैं इसको जल्दी से कवर कर सकूँ. I know you will have your questions and your confusions, so we will address them at the very end in a Q&A session. ठीक है? So तब तक let me speak. It is very basic things. आपको बहुत जल्दी से बहुत अच्छे से समझ आ जाएंगी. उसके बाद we can actually communicate with each other and you can ask me whatever things you want to ask me. Okay, so there are a few steps to step into freelancing. कोई बहुत हार्ड एंड फास्ट चीज़ें नहीं है और ना ही कोई रॉकेट साइंस है जिसके थ्रू आपको गुजरना पड़ता है और या ऐसी कोई एजुकेशन बेस्ड चीज़ नहीं है जैसे हमें डिग्री लेने के लिए स्कूलिंग करें फिर कॉलेज जाना होता है फिर यूनिवर्सिटी जाना होता है एंड सो मेनी थिंग्स और वो एक्चुअली एजुकेशन फिर भी कंप्लीट नहीं हो पाती है बट दिस इज़ वेरी वेरी डिफरेंट फ्रीलांसिंग को यू कैन स्टार्ट एज सुन एज इन अ मंथ आप एक मंथ में इसको सीख के इसको अच्छे से प्रैक्टिस करके इसको अच्छे से अंडरस्टैंड करके आप स्टार्ट कर सकते हैं एंड नॉट जस्ट स्टार्ट यू कैन एक्चुअली बिल्ड a reputable business through it and you can actually have clients within 1 month अगर आप इसको exactly उन्हीं strategies के थ्रू उन्हीं तरीकों के थ्रू स्टार्ट करें which I am going to share with you. So these are a few things we will be talking inside. And as I said, these are very, very, very basic जो कि आपको समझाने के लिए काफ़ी होंगी कि फ्रीलांसिंग एक्चुअली है क्या और क्या नहीं है. We both. What it is and what it is not. Why you should consider it. Because I know most of you are university students and that too from UET. So हो सकता है आप लोगों के दिमाग में ये सवाल हो दैट व्हाई यू शुड कंसिडर इट ऐसी क्या चीज़ है कि आपको अपनी स्टडीज छोड़ के नहीं इनफैक्ट व्हाई यू शुड accompany it along with your studies. Then I will let you know what are the things you can actually offer as a freelancer, what are the do's and don'ts of freelancing, and you have to follow them. And the other things are how and where to find clients and how to start in the crowd. And ये सारी चीज़ें बहुत basic हैं जो एक्चुअली आपको कहीं से भी पता लग सकती हैं बट आई एम गोइंग टू क्रैक इट डाउन. मैं इसको थोड़ा ब्रेक डाउन करने लगी हूँ आपके लिए ताकि आपको आसानी हो जाए ये सारी चीज़ें समझने में. So let me start with myself. As Habiba has already introduced me a little, but let me tell you a few things. So I actually started my journey back in 2019. Yes, in 2019. So I have over 3 years of experience right now while freelancing. And this is not just it because I was actually doing a permanent kind of job in a hospital, which I left in 2021 to become a full-time freelancer because that was easy for me. 2021 में I had enough resources, I had enough things, I had enough income sources to switch completely my career. Although being a doctor was not just my profession, it was also my passion. But freelancing just happened to me. किसी तरह it just curiously out of curiosity, accidentally या किसी भी तरह से it just happened to me in 2019 and ever since then it has been the best decision of my life and I am actually going to share how you can make it too. और इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आपको अपनी किसी भी किस्म के करियर को शिफ्ट करना पड़े या स्विच करना पड़े. आप इसको एज अ पार्ट टाइम कंटिन्यू कर सकते हैं, एज अ साइड हसल कंटिन्यू कर सकते हैं एंड व्हेन यू आर स्ट्रॉन्ग इनफ और जब आपको लगे कि आपके सोर्सेज ऑफ इनकम आर स्ट्रॉन्ग इनफ यू कैन एक्चुअली स्विच to it completely, totally depending on you. That is completely your choice. So let me start with the very basic introduction. आप लोगों में से अगर किसी को नहीं पता है इस बारे में तो these are the things that are actually for you जो मैं आपको समझाना चाहती हूँ what it is and what it is not. और what it is not समझना इसलिए ज़रूरी है ताकि वो misconceptions जो हमारी सोसाइटी में इसको लेकर हैं वो क्लियर हो जानी चाहिए एंड यू मस्ट नो कि आपको कौन सी चीज़ें फॉलो करनी है और कौन सी चीज़ें फॉलो नहीं करनी है. सो फ्रीलांसिंग इज एक्चुअली अ कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड एंटरप्रेन्योरशिप जो कि मैंने लिख दिया है और आपको नज़र भी आ रहा होगा. व्हाट डज इट मीन इन सिंपल लैंग्वेज. ये एक ऐसा फॉर्म ऑफ वर्क है या ऐसा फॉर्म ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप है जिसमें आप एक्चुअली एक सर्विस सेल कर रहे होते हैं, एक स्किल सेल कर रहे होते हैं. आपके पास कोई स्किल होती है
आपके पास कोई सर्विस होती है जिसको आप सेल आउट कर सकते हैं टू अ बायर टू अ क्लाइंट, जिस पर्सन को आप ये चीज़ें सेल कर रहे होते हैं अपनी सर्विस, आप उसको क्लाइंट बोल सकते हैं, आप उसको बायर बोल सकते हैं, वट एवर यू नेम इट, द थिंग इज सेम कि आप अपनी सर्विस किसी को सेल आउट कर रहे हैं एंड दे आर पेइंग यू डायरेक्टली फॉर इट एंड यू आर डन विद देम। आपने किसी के लिए कोई काम किया, उसने आपको उसकी फी डायरेक्टली पे कर दी है एंड यू बोथ आर डन विद ईच अदर। आप लोगों में कोई भी, दोनों में कोई भी चीज़ ऐसी नहीं होगी जो आपको बाउंड करके रखे एक दूसरे के साथ, जस्ट लाइक किसी एम्प्लॉयर और किसी बॉस के साथ होता है, या जैसे ऑफिस बेस्ड जॉब्स होती हैं, या जैसे क्या कहते हैं उसको, जिस तरह हम ऑफिस में काम करते हैं, 9 to 5 जॉब्स करते हैं, सो वी हैव अ सेट अमाउंट ऑफ टाइम हमें वहाँ पे देना पड़ते हैं एंड वी हैव अ सेट और फिक्स्ड अमाउंट ऑफ सैलरी जो हमें उन सारे काम के बदले में मिलती है। पर फ्रीलांसिंग इज डिफरेंट इन वे that it actually provides you the freedom. It actually provides you a flexibility and control. अब वो सारी चीज़ें किस तरह से आती हैं, एज आई सेड यू प्रोवाइड अ स्पेसिफिक सर्विस और बायर आपको उसके लिए पे कर देता है। तो इसमें आप कर क्या रहे होते हैं, यू आर सिंपली यूजिंग योर स्किल्स जो कि आपने अटेन की होंगी, जो आपने लर्न की होंगी, सीखी होंगी, और समटाइम्स वो स्किल्स एक्चुअली आपकी एजुकेशन के अंदर ही होती हैं, बट हमें उसे प्रैक्टिकली यूज़ करना सिखाया नहीं गया होता। समटाइम्स कुछ स्टडीज़ ऐसी हैं या कुछ आपके एजुकेशनल करियर्स ऐसे होते हैं जिनको आप एज अ फ्रीलांसर भी यूज़ कर सकते हैं, बट आवर सोसाइटी इज़ कम्प्लीटली अनअवेयर ऑफ इट। So you are actually using your skills, your education, your previous experience किसी भी जॉब के साथ आप उन चीज़ों को यूज़ करके मल्टीपल क्लाइंट्स के साथ काम कर सकते हैं। नॉट अनलाइक द जॉब, जो रेगुलर जॉब्स होती हैं वहाँ पे आपका एक ही कॉन्ट्रैक्टर है या एक ही ऑफिस है जहाँ पे आपने काम करना है, वहीं से आपको सैलरी मिलनी है, उन्हीं के लिए आपने काम करना है एंड यू कैन नॉट मूव टू अनदर जॉब। पार्ट टाइम करना एक अलग चीज़ है, बट पार्ट टाइम में अगेन यू आर बाउंड टू समवन, यू आर इन अ फिक्स्ड रिलेशनशिप विद योर बॉस, जिसमें आपकी एक फिक्स सैलरी है, फिक्स रोल है, फिक्स सब कुछ है। बट इन फ्रीलांसिंग आप मल्टीपल क्लाइंट्स के साथ काम कर सकते हैं विदाउट कमिटिंग टू अ सिंगल एम्प्लॉयर। आप उनमें से किसी एक सिंगल बंदे को भी कमिट नहीं कर रहे होते दैट यू आर गोइंग टू स्टे विद देम फॉर एवर, या आप उनके साथ 25 साल काम करेंगे तो ही आपकी पेंशन जो है वो या फिर आपका रिटायरमेंट प्लान रेडी होगा। ऐसा कोई सिस्टम नहीं होता। फ्रीलांसिंग इज कंप्लीट एंटरप्रेन्योरशिप पैकेज जिसमें आप फ्री होते हैं टू चूज योर क्लाइंट्स, टू वर्क विद योर क्लाइंट्स, टू चूज योर स्पेस, टू चूज योर लोकेशन, और जितनी भी चीज़ें हो सकती हैं इन वर्क स्पेस, आप उन सारी चीज़ों पे आपको कंट्रोल होता है। दैट इज़ व्हाट आई रोट हेयर, दैट इट एक्चुअली प्रोवाइड्स यू विद कंट्रोल। आपके पास अच्छा खासा कंट्रोल आ जाता है, यू हैव कंट्रोल ओवर सो मेनी थिंग्स एंड यू हैव एक्चुअली फ्लेक्सिबिलिटी, और फ्लेक्सिबिलिटी भी सॉरी, और फ्लेक्सिबिलिटी जो है, जस्ट अ सेकंड, okay, so sorry, flexibility means freedom. You have actually so much freedom. अब आपके पास फ्रीडम रहेंगे, आप ऑफर कर सकते हैं, आप जो स्किल सीखना चाहते हैं आप सीख सकते हैं। आई एम अ मेडिकल पर्सन, मैं अगर मेरे प्रोफेशन को देखा जाए तो आई एम अ डॉक्टर, बट उसका कोई ताल्लुक नहीं है सॉफ्टवेयर्स के साथ, एप्लीकेशंस के साथ, एप्स के साथ, बट आई एम स्टिल अ राइटर फॉर सॉफ्टवेयर्स, for apps. I do copywriting, content strategy, content marketing, and so many more things for softwares. और मैंने अपने करियर में मे बी नॉट इवन इन माई वाइल्डेस्ट ड्रीम्स मैंने ये कभी सोचा होगा दैट आई वुड बी डूइंग समथिंग फॉर सॉफ्टवेयर, क्योंकि मेरा उसके साथ कोई ताल्लुक नहीं था। दैट वाज नॉट इन माई करियर, मैंने उस चीज़ के बारे में बिल्कुल कभी पढ़ा नहीं था। बट नाउ व्हेन आई एम वर्किंग फॉर इन दैट स्पेस, तो अब मुझे उस चीज़ का जितने अच्छे से पता है, आई गेस किसी और को पता नहीं होगा अबाउट सॉफ्टवेयर, हाउ टू राइट फॉर सॉफ्टवेयर, इस तरह की चीज़ें। सो दिस इज एक्चुअली कम्प्लीटली, इट कैन बी रेलिवेंट, हो सकता है कि जो सर्विसेज आप ऑफर करना चाहते हैं, जो स्किल्स आप ऑफर करना चाहते हैं, दे हैव नो रिलेशन विद योर करियर, दे आर कम्प्लीटली अपोजिट ऑफ योर करियर्स। और इसी तरह हो सकता है कि वो कुछ ना कुछ रेलिवेंट हो आपकी जॉब के साथ। फॉर एग्जाम्पल, देयर आर सो मेनी मेडिकल राइटर्स आउट देयर
जो कि खुद डॉक्टर्स हैं, सो उनकी एजुकेशन एक्चुअली उनको इसी तरह से फ्रीलांसिंग में भी फ़ायदा दे दिया दैट दे आर फ्रॉम द मेडिकल बैकग्राउंड, इसलिए एज अ मेडिकल राइटर उनको हमेशा प्रेफर किया जाता है बिकॉज दे हैव द इनफ नॉलेज और बेसिक नॉलेज जिसके लिए राइटिंग करनी है उन्होंने. सो इट कैन बी रेलिवेंट एंड इट कैन बी कम्प्लीटली डिफरेंट, टोटली डिपेंडेंट ऑन यू कि आप क्या सीखना चाहते हैं, आप क्या सर्व करना चाहते हैं, आप किस किस्म की ऑफर्स क्रिएट करना चाहते हैं फॉर योर क्लाइंट्स और वट एवर अट्रैक्ट्स यू, आप उसको कम्प्लीटली ले आउट कर सकते हैं. उसके बाद यू हैव फ्रीडम ऑफ टाइम. ऑब्वियसली फ्रीडम ऑफ टाइम इज इस सेंस में नहीं कि आपका जब दिल किया आप काम करेंगे और जब दिल किया आप उसको छोड़ देंगे. दैट इज़ नॉट हाउ इट वर्क्स. ऑल दो बहुत सारे लोगों को लगता है कि शायद फ्रीलांसिंग ऐसे ही काम करती है, बट जब आपका दिल करे उठ के काम कर रहे हैं, जब दिल नहीं करे तो बस हर चीज़ बंद और बैठ जाए, ऐसे नहीं होता. द थिंग इज यू हैव द फ्रीडम ऑफ टाइम एंड आई वुड से टाइम स्लॉट. आपके पास ये फ्रीडम है कि आप किस टाइम में काम करना चाहते हैं, आप अपने डे में अपनी रूटीन को किस तरह से सेट करना चाहते हैं. अनलाइक योर ऑफिस जॉब्स जहाँ पे आपको पता है कि आपको 8 बजे निकलना है घर से, जाना है एंड यू हैव टू बी बैक अराउंड 6-5 जो भी टाइमिंग्स होती हैं ऑफिस की. सो आपको उस टाइम जितनी भी वो टाइम स्पेस होती है 8 to 5 या 9 to 5 आप ऑफिस में रहना पड़ता है, आपको वहाँ काम करना पड़ता है. आपकी जो ब्रेक्स का टाइम सेट होता है आपको उसी टाइम पे ब्रेक मिलती है, उसके अलावा आपको काम ही करना है वहाँ पे बैठ के. एवरीथिंग इज़ प्रीटी मच फिक्स्ड. लेकिन यहाँ पे आपका फ्रीडम ऑफ टाइम ये होता है that you have no fixed timings. आपके क्लाइंट ने आपको बाउंड नहीं किया हुआ है कि रात को 1 बजे ही मुझे काम करके देना है या सुबह के 6 बजे ही उठ के काम करना है या मुझसे तुमने शाम के 5 बजे ही कम्युनिकेट करना है. देयर इज़ नो सच थिंग. यू कैन एक्चुअली डू इट वट एवर टाइम यू लाइक. आप चाहें तो आप अपने पूरे रूटीन को रात को सेटअप कर लें. दैट मोस्टली फ्रीलांसर्स डू. ख़ास तौर पे वो फ्रीलांसर्स जो इसको पार्ट टाइम की तरह काम कर रहे होते हैं इसमें, दे एक्चुअली डू दिस थिंग कि वो अगर स्टडीज़ कर रहे हैं, अगर वो स्टूडेंट्स हैं, यूनिवर्सिटी गोइंग स्टूडेंट्स हैं या कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स हैं या ऑफिस वर्कर्स हैं, तो वो रात को अपना टाइम फिक्स कर सकते हैं फॉर फ्रीलांसिंग जहाँ पे वो अपना फ्रीलांसिंग का काम रात को करते हैं. बट देयर आर सो मेनी पीपल लाइक मी जिनको अपना काम जो है दिन में करने की आदत है, बट देर इज़ नो सच रूटीन कि मुझे 9 बजे ही लैपटॉप पे बैठना है, मुझे 5 बजे ही उठना है, मुझे 2 बजे ही ब्रेक लेनी है. इस तरह का कोई सिस्टम नहीं होता. आई कैन सिट ऑन माई लैपटॉप, आई कैन सिट टू वर्क वेन एवर आई वॉन्ट. चाहे मैं उसको 10 बजे स्टार्ट करूँ, 9 बजे स्टार्ट करूँ, चाहे मैं उसको 5 की बजाय 4 बजे एंड कर लूँ और बीच में मैं जितनी मर्जी ब्रेक्स लूँ और वट एवर आई डू. मेरी वर्क स्पेस में जो मेरी पर्सनल स्पेस होती है वो बहुत ज़्यादा होती है. ऑब्वियसली जब आप एक ऐसा काम कर रहे हैं वेयर नो वन इज़ एक्चुअली सीइंग यू, तो ऑल दो इट gives you a lot of laziness, but उसके साथ साथ फ़ायदा ये होता है that you have your personal space. आप जो भी कर रहे हैं, जिस हाल में भी कर रहे हैं, चाहे आप पीजीज में बैठे हुए हैं, चाहे आप सूट पहन के बैठे हुए हैं, that is totally your choice. So there is no such thing कि आपको कोई इस चीज़ पे रोक सकता है. देन यू हैव फ्रीडम ऑफ मनी. आप एज आई सेड जब आप जॉब कर रहे होते हैं तो वो एक बहुत ही फिक्सेटेड चीज़ होती है. यू नो यू हैव टू गो टू दिस जॉब ऑनलाइन, आपको 5 बजे घर आना है, पूरे महीने में ये काम आपको करना है, ये वाला आपका रोल है एंड यू आर गोइंग टू गेट दिस एक्स नंबर ऑफ अमाउंट, वो जो भी हो आपकी अमाउंट फिक्स्ड होती है. बट इन फ्रीलांसिंग दिस इज द बिगेस्ट फ्रीडम एनीवन कैन हैव, दैट इट इज दैट यू हैव द फ्रीडम ऑफ मनी. आपके पास मनी की फ्रीडम है, आप जब चाहे आप स्केल कर सकते हैं. ऑब्वियसली इसमें बिकॉज आप पर्सनली अकेले ही काम कर रहे हैं तो सारी की सारी मेहनत भी आपको खुद करनी पड़ती है, बट द रिवॉर्ड्स द फ्रूट्स आर ऑलवेज वेरी एनकरेजिंग और उनसे आपको बूस्ट मिलता है जब आप देखते हो कि आपने अकेले एज अ फ्रीलांसर sometimes you earn more than your jobs. Sometimes क्या even I personally do this, I am earning 5 times or maybe 10 times more what I used to get through my job, and that was totally my decision to completely quit my career या my job. आपके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप ऐसे करें. अगर आप एक अच्छी अमाउंट अर्न करने लग गए हैं तो ज़रूरी नहीं है कि आप अपने करियर को भी छोड़ें. यू कैन कंटिन्यू इफ़ यू कैन कंटिन्यू बोथ. अगर आप में दोनों को कंटिन्यू करने का स्टेमिना है तो यू शुड गो विद इट. आप एक तरफ अपनी जॉब को रखें, अपने करियर को रखें और दूसरी तरफ अपने लिए एक टाइम फिक्स कर लें दिन का, चाहे वो 2 घंटे हैं, चाहे वो 4 घंटे हैं, 5 हैं, वट एवर अमाउंट ऑफ एफर्ट यू कैन पुट इन. आप उसको यूज़ करें और उससे अपनी एक साइड इनकम या एक साइड हसल के तौर पे इसको चलाते रहें और आपके पास एक अच्छा सोर्स ऑफ इनकम आ जाएगा. सो इट गिव्स यू अ फ्रीडम ऑफ मनी कि आपकी कोई फिक्स्ड अमाउंट नहीं है.
देयर कैन बी मंथ्स जहाँ आप थाउजेंड्स में कमा रहे होंगे, देयर कैन बी मंथ्स जहाँ आप सिक्स फिगर्स में या लैक्स में कमा रहे होंगे। एंड इवन एंड इफ यू आर एक्सपीरियंस्ड पर्सन या आप एक अच्छे खास से अब ग्रूम्ड पर्सन है, ग्रूम्ड फ्रीलांसर है, तो यू कैन इवन अर्न मल्टीपल सिक्स फिगर्स इन अ मंथ। आप एक से ज़्यादा सिक्स फिगर्स यू कैन हिट दोस इजीली अगर आप experienced हो चुके हैं। Because again, it is not something that happens overnight. There are a lot of things you have to go through और आपको consistently काम करना पड़ता है। चाहे एक साल है, 2 साल है, थ्री years हैं, जितने भी साल लगते हैं आपको। If you are working consistently, if you are putting the right amount of effort, if you have the right skill, if you have the right knowledge, if you have the right services to offer, तो ऐसा हो नहीं सकता कि आपको रिजल्ट्स नजर ना आए या आपको उस साइड इनकम से उतना सोर्स जनरेट ना हो रहा हो जो जितनी आपकी मेहनत लग रही है। दैट इज़ अ बेट, वो होता ही होता है। सो द नेक्स्ट फ्रीडम इज फ्रीडम ऑफ लोकेशन। आपके पास लोकेशन की फ्रीडम होती है। एज आई सेड, यू कैन सेट अप योर वर्क स्पेस एनीवेयर। आप कभी कहीं से भी काम कर सकते हैं। यू कैन वर्क फ्रॉम योर रूम, फ्रॉम योर बेडरूम, फ्रॉम योर लाउंज। आप किसी आप वेकेशन पे गए हैं कहीं, आप अपना लैपटॉप साथ वहाँ पे ले जाएं, यू कैन वर्क फ्रॉम देयर। रिमोट वर्क का या ऑनलाइन फ्रीलांसिंग का सबसे मजे का काम यही होता है दैट यू कैन वर्क लिटरली फ्रॉम एनीवेयर। किसी को फर्क नहीं पड़ेगा कि आपके कमरे में एक सेट वर्क स्पेस है कि नहीं, आपके घर में एक ऑफिस है कि नहीं। nobody wants to know it, nobody is interested in it. The thing the client is interested in is the service you are going to offer to them, the solution you are going to provide to them for their solutions. इसलिए आपको एक लोकेशन की फ्रीडम बहुत अच्छी मिल जाती है। आई गेस दैट इज़ अ प्रिटी कूल थिंग कि आप कहीं से भी बैठ के काम कर सकते हैं। ऑफिस वाला चक्कर नहीं है, आप थक गए हैं तो उठ सकते हैं, आप बाहर जा सकते हैं। यू कैन चेंज योर एनवायरनमेंट, यू कैन सेट ब्रेक्स फॉर योर सेल्फ। आप जब चाहें, जहाँ चाहें, जिस टाइम चाहें ब्रेक ले सकते हैं। यू हैव नो यू नो आप आपके पास कोई फिक्स्ड अमाउंट ऑफ फिक्स्ड रूटीन नहीं है कि आपने उसको ही फॉलो करना है। यू कैन मेक योर ऑन। तो ये सारी चीज़ें होती हैं व्हेन यू नो द रियल फ्रीलांसिंग। अब इसमें ये वो वाले तरीके नहीं है। अक्सर मैंने देखे हैं whenever you search on Google या कहीं पे भी, आई गेस आजकल ये बहुत मॉडल्स चल भी रहे हैं ऑनलाइन पैसे कमाने के। दे आस्क यू फॉर समथिंग, दे आस्क यू फॉर मनी, या अगर आपसे कोई भी डिग्री के लिए डिमांड करे या इस तरह की चीज़ें, तो ये सारी चीज़ें फ्रीलांसिंग में कहीं भी मैटर नहीं करती हैं। आपकी एज मैटर नहीं करती है। आप चाहे 14 साल के हैं, आप चाहे 60 years के हैं, nobody इज इंटरेस्टेड इन इट अगेन। अगर आपके क्लाइंट को किसी चीज़ में इंटरेस्ट है तो वो सिर्फ और सिर्फ आपकी सर्विसेज में है। उसको फ़र्क नहीं पड़ता आप यूईटी से पढ़े हैं या आप केएमयू से पढ़े हैं या कहाँ से पढ़े हैं, आपके पास कौन सी डिग्री है, आपका एक्सपीरियंस कितना है। ये सारी चीज़ें बिल्कुल भी मैटर नहीं करती हैं व्हेन यू आर अ फ्रीलांसर। द ओनली थिंग दैट मैटर्स इज टू हैव अ स्किल, कि आपके पास एक स्किल हो, एक सर्विस हो जो आप किसी को ऑफर कर सके और उस ऑफर करने से उनको एक्चुअली फ़ायदा हो रहा हो, उनकी किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकल रहा हो, उनको कोई ना कोई कोई फ़ायदा मिल रहा हो, कोई रिजल्ट मिल रहा हो, विच वी विल डिस्कस लेटर। आगे जाके हम उसको डिस्कस करेंगे। सो दिस इज़ व्हाट इट इज़ एंड देयर आर फ्यू थिंग्स दैट इट इज़ नॉट। फ्रीलांसिंग में कुछ चीज़ें या आप कह सकते हैं कुछ मिथ्स हैं दैट आई हैव सीन एट सो मेनी प्लेसेस एंड मे बी यू नो सम टू। आपको भी कुछ ऐसे मिथ्स का या ऐसी मिस्टेक्स का पता होगा जो कि एक्चुअली होती नहीं है इन द फ्रीलांसिंग वर्ल्ड, बट people assume it to be there. So the very first thing is फ्रीलांसिंग में फ्री का वर्ड कहीं भी फ्री वर्क के लिए नहीं होता है। यू नेवर वर्क फॉर फ्री। आप कभी भी किसी के लिए भी फ्री में काम नहीं कर रहे होते हो, दैट इज़ नॉट फ्रीलांसिंग। जब आप किसी के लिए फ्री में काम कर रहे हो, दैट इज़ योर चॉइस। फ्रीलांसिंग में आपकी सर्विसेज की एक सेट अमाउंट होती है, एक ख़ास प्राइस होती है जो आपने सेट की होती है कि इस सर्विस के लिए या इस ऑफर के लिए आई एम गोइंग टू चार्ज यू दिस अमाउंट, वो जो भी अमाउंट होगी। और आप कभी भी किसी के लिए फ्री काम नहीं करते हैं। एंड इफ़ यू आर डूइंग इट या कोई आपको ये कहता है कि आप उसके लिए ये करें और इसके बदले में वो आपको रिव्यूज़ देंगे या फिर आपको कुछ भी देंगे, तो वो सारी चीज़ें आर टोटली स्कैम या रेड फ्लैग्स समझ लें। आपने वो काम नहीं करने। You never have to work for free. जैसे कुछ freelancers I have seen them when they do not get the work, और वो ख़ास तौर पे काम उनको इसलिए नहीं मिल रहा होता कि या तो उनकी स्किल अच्छी नहीं होती है या उनमें मार्केटिंग नहीं होती है, उनको मार्केटिंग करनी नहीं आती किसी चीज़ की, या फिर उनको निगोशिएट करना नहीं आता, कम्युनिकेट करना नहीं होता।
नहीं आता, तो टू गेट मोर क्लाइंट्स दे एक्चुअली स्टार्ट वर्किंग फॉर फ्री, कि अगर हम किसी के लिए फ्री में काम करेंगे तो मे बी वी कैन हिट सम मोर क्लाइंट्स। तो ऐसी चीज़ें आपने नहीं करनी है। एज आई सेड, इफ़ यू फॉलो ऑल द स्ट्रेटजीज एंड ऑल द राइट स्टेप्स टू फ्रीलांसिंग, तो आपको कभी भी किसी के लिए फ्री में काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। द सेकेंड थिंग दैट अ लॉट ऑफ पीपल थिंक आर इट थिंग, वो ये होती है कि इट इज़ एन अनस्टेबल सोर्स ऑफ इनकम, एंड इट इज़। अगर आप ह्यूमन साइकिल को देखें या हमारी जो एक नॉर्मल नॉर्म है, उसमें क्या होता है, हमारी जो जॉब्स होती हैं वी एक्चुअली रिलाई टू मच ऑन देम। और हमें एक ऑल दो कोई गारंटी नहीं होती है उस जॉब की, खासतौर पे प्राइवेट जॉब्स होती हैं, उनकी भी कोई गारंटी नहीं है, वो भी अनस्टेबल हो सकती हैं, दे कैन ले यू ऑफ एनी टाइम। बट इन द सबकॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियसली हमें ये चीज़ जो है समहाउ हमारे दिमाग में फिक्स्ड होती है दैट इट इज़ स्टेबल, और ये जॉब हमारे पास हमेशा रहेगी, वी विल कीप गेटिंग दिस फिक्स्ड अमाउंट ऑफ इनकम। और एक अच्छी चीज़ जॉब में ये होती है ऑब्वियसली कि आपको एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ नंबर या एक फिक्स नंबर मिल रहा होता है एवरी मंथ, सो यू आर नो, यू डोंट हैव टू वरी कि आप क्लाइंट्स कहाँ से ढूंढेंगे, वर्क कहाँ से ढूंढेंगे, आपकी यू नो जो सैलरी है वो ऊपर नीचे हो सकती है या नहीं, आपको पता है एक काम मैंने करना ही है और इसकी इतनी फिक्स्ड अमाउंट मुझे मिलनी ही मिलनी है, सो यू आर somehow relaxed। तो हमारी ह्यूमन साइकी जो होती है वो हमें यही कह रही होती है दैट इट इज गारंटेड सोर्स ऑफ इनकम, हालांकि इट इज नॉट, इवन द जॉब्स आर नॉट अ स्टेबल सोर्स ऑफ इनकम। बट अबाउट फ्रीलांसिंग आई वुड से, जैसे मैंने आपको बताया, आई लेफ्ट माई परमानेंट जॉब। मेरी एक तो होती है लाइक यू नो अ टेम्पररी जॉब या इस तरह की चीज़, आई हैड अ परमानेंट जॉब और बहुत अच्छी जॉब, बट आई लेफ्ट इट कम्प्लीटली इन 2021 just to stay a full-time freelancer. As I said, उस time पे my sources of income from freelancing were enough for me, and they were giving me enough sort of freedom, चाहे वो money की freedom थी, चाहे वो location की freedom, चाहे वो time की freedom, and all those things that I mentioned earlier. When I achieved all of those, और जब मुझे इस चीज़ का आइडिया हो गया था कि मुझे कंसिस्टेंटली हर महीने ये वाली इनकम कैसे जनरेट करनी है, ऑब्वियसली एज यू स्टार्ट, ज़रूरी नहीं है कि जैसे ही आप स्टार्ट करें तो यू आर गोइंग टू लैंड सम वेरी हाई पेइंग क्लाइंट्स। हो सकता है आप $5 से स्टार्ट हो और हो सकता है आप $1000 से भी स्टार्ट हो, completely depends on you, your choices, your efforts। बट द थिंग इज कि अगर आप उसको कंसिस्टेंटली रन करेंगे तो यू विल रीच अ स्पॉट जहाँ पे जाके वो चीज़ आपके लिए काफ़ी हो जाएगी। सो व्हेन आई सो कि ये चीज़ मेरे लिए काफ़ी हो गई है एंड आई डू नॉट हैव टू, क्या कह सकते हैं उसको, मुझे खुद को ज़्यादा अजियत नहीं देनी थी कि मुझे एक टाइम पे इतनी सारी चीज़ें करनी पड़ रही थी। सो आई मेड अ डिसीजन दैट आई एम गोइंग टू क्विट माई जॉब एंड आई डिड, एंड it has been like 1.5 or maybe it is about to be 2 years now, and not even a single month जब मुझे कोई भी instability नजर आई हो अपने source of income में, because as I said it is completely dependent on you। ये चीज़ बिल्कुल आपके ऊपर ही dependent होती है how you are going to upskill yourself, आप खुद को मार्केट में किस तरह से प्लेस करेंगे और प्लेस करने के बाद उस पर परसिस्टेंट कैसे रहना आपने और कंसिस्टेंट कैसे रहना आपने। ये सारी चीज़ें जब आपको आती हैं तब आपको पता लग जाता है कि मैंने अपने महीने की इनकम या जो मेरे सोर्सेज ऑफ इनकम है उनको मैंने एक तो इवॉल्व कैसे करना है, उनको बढ़ाना कैसे है और उनको उनकी मजीद ब्रांचेस कैसे बनानी है। दैट इज़ व्हाट आई डिड। आई स्टार्टेड ऑफ विद अ सिंगल प्रोजेक्ट या सिंगल टास्क, and then I started evolving my sources of income, and now I have multiple source of incomes, so that in case एक source of income उनमें से अगर चला भी जाए तो it is not going to affect me much, क्योंकि बाकी चीज़ें मेरे पास होंगी, और जब तक वो बाकी मेरे पास होंगी तब तक जो मेरा एक लॉस हुआ होगा या जो सोर्स ऑफ इनकम मुझसे it is as if I second. Okay, so what was I saying? Okay, so it is just Hello. that. Okay. Excuse me. Can I say one thing? Yes, please.
Actually, ma'am, we were wishing, and some people were also messaging on the group that it's like how about we move on towards the the more of the niches and like how exactly to get started, like instead of just only Yes, focusing I'm doing on this. the importance of freelancing. Okay, that's it. Thank you so much. Okay. Okay, so that was about it. That is what you should know ताकि आपको काइंड ऑफ रेड फ्लैग्स भी पता हो कि कौन सी चीज़ें मुझे नहीं करनी है और ग्रीन फ्लैग भी पता हो दैट व्हिच थिंग्स आई हैव टू स्टार्ट इट सो देयर आर अ फ्यू सर्विसेज यू कैन ऑफर अब जब आप स्टार्ट करते हैं एज अ फ्रीलांसर तो जिस तरह से आप अपना एजुकेशनल करियर स्टार्ट करते हैं यू हैव सो मेनी ऑप्शंस इन फ्रंट ऑफ यू और आपको डिसाइड करना होता है कि आप उनमें से कौन सा ऑप्शन चूज करने लगे हैं अपने लिए दैट इज आउट ऑफ इंटरेस्ट या फिर वो पेरेंट्स की वजह से हो किसी वजह से भी हो यू हैव टू चूज वन राइट इसी तरह सर्विसेज होती हैं बहुत सारी फ्रीलांसिंग में देयर आर सो मेनी स्किल्स आउट देयर और अगर आप मार्केट में निकलें और अगर आप इसको स्टडी करना स्टार्ट करें पढ़ना स्टार्ट करें या किसी भी स्किल को अटेन करना चाहें आप तो यू माइट गेट कंफ्यूज कि इतनी सारी चीज़ें हैं एंड हाउ विल आई एंड अप ऑन वन थिंग लिटरली वन थिंग आपको किसी एक स्किल पे आना है टू स्टार्ट विद ऑल दो आप बाद में उसको अपनी सर्विसेज में मज़ीद चीज़ें ऐड कर सकते हैं बट टू स्टार्ट विद यू हैव टू stay focused on one skill या one service so there can be so many services and obviously I cannot state them all here इसलिए I I accumulated them in this document तो इस document में actually मैंने बहुत सारे services और उन सर्विसेज में आप क्या क्या कुछ कर सकते हैं आई हैव रिटन देम हियर फॉर योर ईज ताकि आपको देख के कुछ आइडिया हो जाए हो सकता है कुछ चीज़ें आपके जैसे कि मैंने कहा एजुकेशनल बैकग्राउंड से रिलेट करी होंगी तो आप इजीली पिकअप कर लेंगे कि मुझे ये वाली स्किल ही सीखनी है या ये वाली सर्विस ही ऑफर करनी है एंड यू कैन गो विद दैट और अगर आप कंफ्यूज हैं कि मुझे वैसा कुछ नहीं करना है आई हैव टू गो विद समथिंग डिफरेंट तो आई हैव कंपायर्ड दीज सर्विसेज आप इनमें से कोई भी सर्विस उठा सकते हैं उसको सीखना स्टार्ट कर सकते हैं एंड यू कैन एक्चुअली देन go out in the market to sell it this for example let me show you one let's say you are someone who is interested in web in websites in mobile या सॉफ्टवेयर या इस तरह की चीज़ों में अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो यू कैन गो विद दीज मैनी थिंग्स इतनी सारी चीज़ें हैं आप कुछ भी इसमें से सीख सकते हैं आप वेब डिज़ाइनिंग सीख सकते हैं आप मोबाइल डिज़ाइनिंग सीख सकते हैं ऐप डेवलपमेंट सीख सकते हैं आप वेब डेवलपमेंट सीख सकते हैं इसी तरह इफ़ यू आर अ पर्सन हु वांट टू बी अ राइटर तो आई हैव okay, so so you can become a copywriter, you can become a medical writer, you can become a legal writer, you can become a content writer, and there are so many options alone in the writing. आप एक सर्विस में चाहें तो सर्विस के अंदर आपको मल्टीपल ऑप्शन नजर आएंगे ये तो these are a few that I have put in here लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप कर सकते हैं but to keep it easy for you I have stated most of them here I guess it covers almost every service every type of service तो आप actually इसको which I will share in the group आप इसको use कर सकते हैं and you can see what type of service you want to deliver what type of offer you want to deliver अब इसमें भी अगर आपको कन्फ्यूजन हो कि कौन सी स्किल मैंने चूज करनी है तो दिस इज द सिंपल लेआउट जो आपको पता होना चाहिए अपने लिए कोई भी स्किल को चूज करने के लिए यू हैव टू कीप इन योर माइंड दीज फोर थिंग्स बस इन चार चीज़ों पे कोई भी स्किल अगर पूरी उतर रही है तो गो विद इट यू हैव टू गो विद दैट वन अब ये चार चीज़ें क्या हैं नंबर वन इट शुड हैव डिमांड आप जो भी स्किल चूज करने लगे हैं आप जो भी सर्विस चूज करने लगे हैं मेक श्योर इट इज़ नॉट आउटडेटेड वो कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो अब यूज़ ही नहीं होती या फिर जो जिसकी अब लोगों को ज़रूरत नहीं है इट शुड बी इन द डिमांड वो कोई भी सर्विस हो कोई भी स्किल हो और उसकी डिमांड है या नहीं है उसकी मेजरमेंट आप इस तरह से कर सकते हैं दैट वेदर द इंडस्ट्री जिस स्किल को आप चूज कर रहे हैं क्या वो इंडस्ट्री ग्रोइंग है या डिक्लाइनिंग है उसका ग्राफ किस तरफ जा रहा है let's say for example I am a copywriter yeah I am a content writer so I know that now in this time digitalization is at the peak and it is not going to slow down anytime sooner आप लोगों को भी पता है कि डिजिटलाइजेशन और टेक्नोलॉजी जिस तरह से बढ़ रही है एप्स जिस तरह से बढ़ रहे हैं सॉफ्टवेयर जिस तरह से बढ़ रहे हैं और हर तरह की डिजिटलाइजेशन जिस तरह से बढ़ रही है तो कंटेंट इज गोइंग टू बी देयर every brand every company every website all of them needs content सबको content चाहिए
अपनी वेबसाइट्स के लिए, अपने ब्रांड्स के लिए, अपने एड्स के लिए, इट कैन बी एनीथिंग, कोई भी चीज़ हो, कंटेंट इज गोइंग टू बी देयर, सो आई नो देयर इज अ लॉट ऑफ डिमांड, और मुझे पता है कि इसमें कोई डिक्लाइनिंग नहीं आने वाली है एनी टाइम सूनर। तो इसलिए आपने जब भी कोई स्किल चूज़ करनी है, मेक श्योर कि आपको नज़र आ रहा हो कि उसमें अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं और उसकी इंडस्ट्री जो है वो ग्रोइंग होनी चाहिए, डिक्लाइनिंग नहीं हो। कोई ऐसी चीज़ नहीं हो जो विद टाइम डिक्लाइन होती जा रही है या विद टाइम नीचे आता जा रहा है उसका ग्राफ एंड इट इज़ नो मोर इन यूज़, इस तरह की चीज़ वो नहीं होनी चाहिए। द वेरी नेक्स्ट थिंग यू नीड टू हैव टू अटेन दैट स्किल इज एक्सपर्टीज, जिसमें आपको पता होना चाहिए हाउ गुड आर यू एट व्हाट यू ऑफर, और ये चीज़ ऑब्वियसली आपको तभी पता लग सकती है व्हेन यू आर गोइंग टू लर्न इट, जब आप उसको सीखेंगे। और सीखना कहाँ से है, आई विल शेयर इट विद यू। सो एक्सपर्टीज में आपको हमेशा दूसरों से बेटर रहना है, यू हैव टू स्टे इन द कंपटीशन, और ये चीज़ सिर्फ फ्रीलांसिंग में नहीं है, इट इज़ इन एवरीवेयर, हर जगह, चाहे वो कॉमन जॉब्स हैं, रेगुलर जॉब्स हैं, कॉर्पोरेट की जॉब्स हैं, कुछ भी है, कोई बिजनेस है, कोई भी चीज़ है। ओनली दोस्त जो competitive रहते हैं, जो कंपटीशन में रहते हैं, जो अपने एक क्या कह सकते हैं उसको, दे हैव अ रिप्यूटेबल अ रिप्यूट, एक्चुअली दे हैव अ रिप्यूट। तो अगर आपके पास एक्सपर्टीज है, रिप्यूट है, अगर आपने खुद को एक ऐसे पोजीशन पे सेट कर दिया है यू आर नो मोर रिप्लेसेबल, या फिर आप एक अच्छे खासे competitive पर्सन बन चुके हैं कि अगर किसी और को आपको रिप्लेस करना होगा तो दे हैव टू बी एज गुड एज यू, तो आपको उस स्किल पे बहुत अच्छा होना पड़ेगा। एंड अगेन यू हैव टू सी कि क्या जिस स्किल को आप सीखने लगे हैं, क्या आप आके उसमें एक्सपर्टीज अटेन कर सकते हैं कि नहीं, और वो तभी होता है जब आपका उसमें इंटरेस्ट हो। लेट्स से आप में से कोई इंजीनियर हो और ही और शी जस्ट सॉ समवन कि कोई कंटेंट राइटर है या कॉपी राइटर है एंड दे आर परफॉर्मिंग वेरी वेल, तो उनको देख के अगर आप भी स्टार्ट हो जाएं दैट आई एम गोइंग टू डू द सेम, बट ज़रूरी नहीं है वो चीज़ आपके लिए भी वैसे ही वर्कआउट करे अगर आपको उसमें इंटरेस्ट नहीं है। आई स्टार्टेड इट बिकॉज आई हैव इंटरेस्ट इन इट, मेरा मुझे राइटिंग अच्छी लगती थी, आई हैव अ पैशन फॉर इट, इसलिए मुझे उसको सीखना और फिर उसको प्रैक्टिकली करना और फिर मार्केट में competitive रहना मेरे लिए आसान था एज कम्पेयर टू समवन जिसका उसमें इंटरेस्ट नहीं होगा, जिसने शायद मुझे देख के स्टार्ट किया होगा नाउ और फिर दे कुडंट मेक इट। तो इसलिए मेक श्योर आप जिस चीज़ में एक्सपर्टीज हासिल करना चाहते हैं इट इज़ इन योर इंटरेस्ट। द नेक्स्ट थिंग इज यू नीड टू नो इफ इट हैज़ अ रिप्लेसेबिलिटी, और अगर आपको लगता है कि उस चीज़ की रिप्लेसेबिलिटी है सो मेक इट अ नॉन रिप्लेसेबल स्किल फॉर योर सेल्फ। और वो आप कैसे कर सकते हैं, आप अपना एक यूएसपी सेट करते हैं जिसको हम बोलते हैं इन फ्रीलांसिंग वर्ड यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन। आप अपना एक यूनिक सेलिंग पॉइंट बनाते हैं, एक ऐसे अपने अंदर अपनी सर्विसेज में कोई ऐसी चीज़ रखते हैं जो कि रिप्लेसेबल नहीं हो, एंड इट कैन बी एनीथिंग। एज आई स्टेटेड इट कैन बी योर स्किल, या तो आप अपनी स्किल में इस लेवल के एक्सपर्ट हो चुके हैं दैट नो वन कैन रिप्लेस यू, या फिर जो न्यूबीज आ रहे हैं या न्यू लोग जो मार्केट में ऐड हो रहे हैं वो आपको रिप्लेस नहीं कर पाएंगे बिकॉज यू आर वेरी हाई इन योर पोजिशन, या फिर आप अपने उस स्किल में अच्छी खासी एक्सपर्टीज मोड में चले गए हैं, या फिर इट कैन बी योर प्राइसिंग, मे बी योर प्राइसिंग इज़ वेरी कंपेटिटिव, जो मार्केट में प्राइस चल रही है आप उनसे अच्छी प्राइस दे रहे हैं, अच्छी प्राइस नेवर मीन कि आप दूसरों से कम प्राइस पे हैं, इट कैन इवन बी द हायर प्राइस, एंड इट completely depends on your skill, जो भी skill आप सीखें। So it can be anything, your pricing, your skills, maybe your delivery, कि आप अपने काम को कितने अच्छे से डिलीवर करते हैं या कितनी जल्दी डिलीवर कर पाते हैं। मे बी देयर इज समवन जो एक सर्विस या किसी भी उसको कोई प्रोजेक्ट मिला है एंड ही इज एबल टू कंप्लीट इट इन अ वीक, but you are able to complete it effectively and efficiently within 3 days or within 4 days, so that is a plus point for you. So make sure कि आप अपने अंदर एक ऐसा पॉइंट जनरेट करना पड़ेगा आपको, या एक ऐसा यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन क्रिएट करना पड़ेगा विच मेक्स यू नॉन रिप्लेसेबल। आपके अंदर रिप्लेसेबिलिटी नहीं होनी चाहिए, इस तरह की स्किल आपके पास होनी चाहिए। So the very last thing that you must look for in your skill is value, कि आप जो स्किल सीख रहे हैं इज इट वैल्यूएबल इन मार्केट, क्या मार्केट में कोई इसको पे करने के लिए रेडी भी है या नहीं, कैन इट जनरेट रिजल्ट्स, क्या ये ऐसी स्किल है जिससे मैं किसी की मदद कर सकता हूँ, दैट कैन जनरेट रिजल्ट्स फॉर माई क्लाइंट्स। और ऑब्वियसली जब तक आप दूसरों के लिए रिजल्ट्स जनरेट नहीं करेंगे या आप उनको फ़ायदा नहीं पहुँचाएंगे तो अल्टीमेटली इट इज़ नॉट गोइंग टू बी इन योर फेवर। तो अगर आप चाहते हैं कि कोई स्किल आपकी फेवर में काम करे और कोई स्किल आपके लिए अच्छे से काम करे या आपकी सर्विसेज
आपके लिए रेवेन्यू जनरेट करें, आपके लिए इनकम जनरेट करें, तो मेक श्योर कि उसमें ये चारों चीज़ें कहीं ना कहीं लाया करती हूँ. इट शुड बी इन डिमांड, यू शुड हैव एक्सपर्टीज फॉर इट, यू शुड बी नॉन रिप्लेसेबल, और आपके स्किल जो है उसमें वैल्यू ज़रूर होनी चाहिए. Okay, so there are a few things that you need to do to start freelancing. और इसी तरह there are a few things that you need to stay away from to become a successful freelancer या to stay as a freelancer. ओके, सो सबसे पहले तो आपको, एज आई सेड, आपको एक मोनेटाइजेबल स्किल सीखनी पड़ेगी, एंड आई हैव शेयर्ड सम विद यू व्हिच आई एम गोइंग टू शेयर इन द ग्रुप एज वेल, सो यू कैन चेक इट आउट देयर. आपके पास एक मोनेटाइजेबल स्किल होनी चाहिए. मोनेटाइजेबल मीन एनी स्किल दैट यू कैन एक्चुअली सेल, एक ऐसी स्किल जिसको आप सेल भी कर सकें. अब वो स्किल, फॉर एग्जाम्पल हम बात करें डिजिटल स्किल्स की, ऐसी स्किल्स जो कि ऑनलाइन सेल हो सकती हैं. और अगर आपके पास कोई ऐसी स्किल है जो कि ऑनलाइन सेल नहीं हो सकती, यू कैन डू इट फिजिकली, या आपके अंदर एक ऐसी खूबी है जिसको आप सिर्फ फिजिकली ही परफॉर्म कर सकते हैं, तो दैट इज़ नॉट गोइंग टू हेल्प यू इन द डिजिटल स्किल. ऑल दो दैट इज़ अ स्किल इन यू, और वो आपको फिजिकली तो हेल्प कर सकती है इन योर रियल वर्ल्ड, बट अगर आप ऑनलाइन दुनिया में काम करना चाहते हैं या डिजिटल स्किल्स पे काम करना चाहते हैं, तो इट शुड बी समथिंग दैट इज़ मोनेटाइजेबल इन द डिजिटल वर्ल्ड. फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपके साथ वो बहुत सारी शेयर की, बट देयर आर अ फ्यू. यू कैन लर्न कॉपी राइटिंग, यू कैन बिकम अ ग्राफिक डिजाइनर, यू कैन बिकम अ वेबसाइट डेवलपर, you can become a video editor, you can become a script writer, and there are so much more जो मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ. तो आपको सबसे पहले तो एक मोनेटाइजेबल स्किल सीखनी ही पड़ेगी. और द मेन पार्ट इज कि आप इसको सीखे कहाँ से. Now this is where the confusion lies, जहाँ पे बहुत सारे freelancers confuse हो जाते हैं, and they think they have to go, कि आपको कोई $1,000,000 तक कोर्स करना पड़ेगा या कोई डिग्री लेनी पड़ेगी तो ही जाके आप एक स्किल अटेन कर पाएंगे. तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. यू कैन एक्चुअली लर्न अ स्किल कम्प्लीटली फ्री. आप उसको कम्प्लीटली फ्री कैसे लर्न कर सकते हैं? देयर आर सो मैनी प्लेटफॉर्म्स आउट देयर. खास तौर पे सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म जहाँ से आप कुछ भी सीख सकते हैं, नॉट जस्ट अ स्किल, यू कैन एक्चुअली लर्न एनीथिंग एंड एवरीथिंग, इज यूट्यूब एंड गूगल. अगर आप इन दोनों चीज़ों को इफेक्टिवली यूज़ करना जानते हैं, और अगर आपको पता है कि यूट्यूबिंग कैसे करते हैं और इसी तरह गूगलिंग कैसे करते हैं, ये दोनों चीज़ें अगर आपको आती होंगी, तो यू कैन मेक इट राइट देयर. आपको किसी कोर्स की ज़रूरत नहीं है, आपको कोई पेड वर्कशॉप्स या कुछ भी, कोई भी ऐसी चीज़ जो भी आपको लगता है कि अभी आपको नहीं करनी चाहिए, यू शुड नॉट गो फॉर इट. आपको फ्री रिसोर्सेज पे जाना है सबसे पहले, एंड यू हैव टू लर्न ऑल दोज मोनेटाइजेबल स्किल्स, या जो भी आप स्किल सीखना चाहते हैं उसके लिए उन सारे के सारे रिसोर्सेज को और सारे प्लेटफॉर्म्स को यूज़ में लाएं. यूट्यूब पे यूज़ करें, यूट्यूब पे जाएं. फॉर एग्जाम्पल, यू वांट टू लर्न कॉपी राइटिंग, तो देयर आर सो मेनी चैनल्स आउट देयर. आप एलेक्स केटोनी का अगर चैनल देखा हो आपने कॉपी राइटिंग, सॉरी, यूट्यूब पे, शी इज़ वन ऑफ द बेस्ट कॉपी राइटर्स आउट देयर, एंड the content on her YouTube channel is more than enough to make you a copywriter. अगर आप एक ऐसे कॉपीराइटर बनना चाहते हैं जिसको बिल्कुल पता ही नहीं है कॉपी राइटिंग चीज़ क्या होती है, एंड यू आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम वेरी वेरी लो, या फिर आप जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं, और अगर आप उसके चैनल पे जाएं, ऑन दैट यूट्यूब चैनल, यू आर गोइंग टू मेक इट राइट देयर. अगर आप उसकी सिर्फ सारी वीडियोस भी देख लें, तो यू विल अल्टीमेटली बिकम अ कॉपी राइटर, और वो भी एक अच्छा खासा पेड कॉपी राइटर. सो इसी तरह यूट्यूब के बाद गूगल, तो मैंने आपको बता ही दिया, देयर आर सो मेनी सोर्सेज आउट देयर टू. एंड देयर आर एक्चुअली फ्यू एजुकेशनल प्लेटफॉर्म जिनमें यूडेमी है, कोर्सेरा है, लिंक्डइन है, अलिसन है, एंड देयर आर सो मच मोर. एंड आई एम गोइंग टू शेयर विद यू एट द वेरी एंड. आपको आइडिया हो जाएगा कि कहाँ कहाँ कौन कौन से प्लेटफॉर्म्स को आप यूज़ कर सकते हैं. तो मेक श्योर टू यूज़ ऑल ऑफ देम. सारे प्लेटफॉर्म्स पे बहुत सारी चीज़ें फ्री पड़ी हैं, बहुत सारे कोर्सेज अनलॉक फ्री पड़े हैं जिनको आप एक्सेस कर सकते हैं. आप उनको इवन अगर आज भी स्टार्ट करें तो विद इन अ वीक आप वो सारी चीज़ें सीख सकते हैं और उनको अप्लाई कर सकते हैं. सो द वेरी फर्स्ट थिंग यू हैव टू डू इज टू लर्न अ मोनेटाइजेबल स्किल. The next thing you need to do, just like your educational system जैसे हमारा होता है कि आप डिग्री कंप्लीट करने के बाद अगली चीज़ क्या होती है कि आपको जॉब चाहिए, और जॉब ढूंढने में सबसे बड़ा मसला ये होता है कि आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, और एक्सपीरियंस के लिए आपके पास जॉब नहीं है. वही वाली कन्फ्यूजन आपको फ्रीलांसिंग में भी मिलती है कि आपको क्लाइंट्स चाहिए तो आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, पास्ट क्लाइंट्स का वर्क होना चाहिए, लेकिन पास्ट क्लाइंट तो है ही नहीं क्योंकि क्लाइंट को अगेन एक्सपीरियंस चाहिए. तो दीज बोथ थिंग्स को राउंड एंड राउंड, कि क्लाइंट्स के लिए एक्सपीरियंस चाहिए होगा और एक्सपीरियंस के लिए क्लाइंट्स चाहिए होंगे. तो
इसलिए देयर इज़ सिंपल सोल्यूशन टू इट जो आप यूज़ कर सकते हैं, और उससे आप अपना पोर्टफोलियो बना सकते हैं। अब पोर्टफोलियो होता क्या है? पोर्टफोलियो इज़ एक्चुअली a file. It could be a file, it could be a website, it can be in any form, जहाँ पे आप डिस्प्ले कर रहे होते हैं अपना वर्क, आपने किसी के लिए भी कोई काम किया है। फॉर एग्जांपल एज अ राइटर, अगर फॉर एग्जांपल मैं एक राइटर हूँ और मैंने अगर फ्रीलांसिंग एज अ राइटर स्टार्ट करनी है, ओके, सो अगर मैंने सॉरी अगर मैंने राइटिंग स्टार्ट करनी है आज से, तो व्हाट वुड आई डू? मैं पहले उसको सीखूंगी, सीखने के बाद नाउ आई हैव टू मेक अ पोर्टफोलियो। मुझे अब अपने कुछ सैम्पल्स इकट्ठे करने हैं, मुझे अपने काम के कुछ सैम्पल्स को एक्यूमुलेट करना है, चाहे मैं उसको ड्राइव पे किसी एक फाइल में या डॉक्स पे इकट्ठा करूँ, चाहे मैं उसकी एक वेबसाइट बना के वहाँ पे अपना काम पब्लिश करूँ। इट कैन बी इन एनी मीडियम, बट द थिंग इज़ कि अब मेरे पास एक पोर्टफोलियो होना चाहिए, और पोर्टफोलियो इज सिंपली द सैम्पल्स, जो भी आपके काम के सैम्पल्स हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप एक ग्राफिक डिज़ाइनर हैं, तो आपके पास ग्राफिक डिज़ाइनिंग के सैम्पल्स होने चाहिए जो आप अपने क्लाइंट्स को दिखा सकें, दिस इज़ द टाइप ऑफ थिंग आई डू, या दिस इज़ द टाइप ऑफ वर्क आई डू। अब द थिंग इज़ के क्लाइंट्स आपसे पहले मांगते हैं पोर्टफोलियो, और फ्रीलांसर्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमने अभी किसी के साथ काम किया ही नहीं है, तो हम इनको सैम्पल्स कहाँ से लाते हैं। सो यू कैन ब्रेक दैट डाउन बाय मेकिंग अ मॉक पोर्टफोलियो। अब मॉक पोर्टफोलियो ऐसे होता है कि आप एज द नेम सजेस्ट, आप उसको मॉक करते हैं, आप एक एजम्पशन क्रिएट करते हैं, या एक ऐसा सपोज्ड क्लाइंट सोच लेते हैं कि अगर मेरे पास ABC क्लाइंट होगा, और अगर उसको ये सर्विस चाहिए मेरी, जो फॉर एग्जांपल यू आर ग्राफिक डिज़ाइनर एंड यू नो देयर इज़ अ पर्सन या देयर इज़ अ कंपनी आउट देयर जिनको लेट्स से अपने इंस्टाग्राम की पोस्ट के डिज़ाइंस चाहिए, एंड यू वांट टू बी दैट वन, आप उस तरह के ग्राफिक डिज़ाइनर बनना चाहते हैं जो कि इंस्टाग्राम पे पोस्ट किसी को क्रिएट करके दे सकता है। सो व्हाट वुड यू डू? आपको किसी क्लाइंट का वेट करने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ उसको सपोज करें उस सारे सिचुएशन को कि वो किस तरह का क्लाइंट होगा, उसकी क्या रिक्वायरमेंट्स हो सकती हैं, उसको किस तरह का काम चाहिए, एंड देन एक्चुअली क्रिएट इट। फिर आप उसको क्रिएट करो, और उसको किसी भी क्लाइंट के साथ यू नो लिंक करने की ज़रूरत नहीं है, यू कैन सिंपली कीप इट विद योर सेल्फ। उसको चाहे आप एक PDF के फॉर्म में रख लें, चाहे आप उसको अपनी ड्राइव पे सेव कर लें और उसका लिंक शेयर कर दिया करें अपने क्लाइंट्स के साथ। आप और कोई भी तरीका, कोई भी आसान सा तरीका, जैसे भी आपको ईजी हो, आप उसको यूज़ कर सकते हैं। इनफैक्ट देयर आर अ फ्यू वेबसाइट्स आउट देयर जहाँ पे आप, जिनको आप पोर्टफोलियो वेबसाइट्स ही बोलते हो, जो आपको ये अपॉर्चुनिटी देती हैं कि आप वहाँ पे अपने वर्क को पब्लिश करके या एक्यूमुलेट करके एक जगह पे रख सकते हैं, और फिर अगर आपका कोई क्लाइंट आपसे पोर्टफोलियो मांगे, तो आप सिंपली उनको उस वेबसाइट का लिंक शेयर कर देते हैं कि दिस इज माय पोर्टफोलियो एंड दे कैन गो देयर एंड सी ऑल ऑफ योर वर्क। सो यू हैव टू मेक अ पोर्टफोलियो नेक्स्ट, एंड लेट मी टेल यू कि अगर आपके पास पोर्टफोलियो नहीं होगा, अगर आपके पास काम के सैम्पल्स नहीं है, वट एवर द वर्क यू आर डूइंग, आप किसी भी तरह के स्किल, जो आपकी सर्विस है, हर सर्विस के लिए, हर स्किल के लिए आपको पोर्टफोलियो चाहिए होगा। और अगर आपके पास ये नहीं है, तो नोबडी इज गोइंग टू ट्रस्ट यू, नोबडी इज गोइंग टू सी यू एज अ क्रेडिबल फ्रीलांसर, और उनके लिए आपकी वैल्यू ज़्यादा नहीं होगी। इसलिए मेक श्योर कि बिफोर ऐसे नहीं करना आपने कि आप एक स्किल को सीखें और फिर आप सीधे जंप कर जाएं टू मार्केट प्लेसेस या फिर उन प्लेटफॉर्म्स पे जहाँ पे आप अपनी स्किल को सेल कर सकते हैं, एंड देन जब क्लाइंट्स आएंगे और वो आपसे सैम्पल्स मांगेंगे, आपके पास वो नहीं होते हैं, फिर आपको रिजेक्शन फेस करनी पड़ती है, फिर आपको यू नो काइंड ऑफ क्या कहते हैं उसको, एक अजीब सी कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाती है कि मे बी आई कैन नॉट डू इट, आपको ये सारी चीज़ें होने लग जाती हैं। सो टू मेक श्योर कि आपको इन सारी चीज़ों से नहीं गुजरना पड़े, मेक श्योर कि आप स्ट्रेटेजिकली चलें, आप स्टेप बाय स्टेप चलें। स्किल सीख लिए तो आप अपने पोर्टफोलियो पे काम करें, भागने की ज़रूरत नहीं है, ओवरनाइट कुछ भी नहीं होने वाला है, आप एक ही दिन में कभी भी क्लाइंट्स को लैंड नहीं करने वाले हैं अनटिल और अनलेस यू आर कम्प्लीटली आर्मर्ड। अगर आपके पास वो सारे हथियार रेडी हैं जो कि एक फ्रीलांसर के पास होने चाहिए, तो स्किल सीखने के बाद आपका सेकंड काम हमेशा यही होना चाहिए दैट यू हैव टू मेक अ पोर्टफोलियो। और वो पोर्टफोलियो जो है उसके लिए ज़रूरी नहीं है अगेन कि आप किसी क्लाइंट का वेट करें, यू कैन एक्चुअली मॉक इट, और आप उसको सिंपली मॉक कर सकते हैं और क्रिएट कर सकते हैं, एंड देन यू कैन सेव इट इन एनी फॉर्म यू लाइक। आप उसको PDF में सेव करके रख लें, आप उसको ड्राइव पे अपलोड कर दें और ड्राइव का लिंक शेयर कर लिया करें, आप उसको किसी पोर्टफोलियो वेबसाइट पे रख दें, इट इज़ टोटली अप टू यू। उस मीडियम का कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है आपके क्लाइंट पे, और कभी भी क्लाइंट इस चीज़ को चेक नहीं करते हैं तो ये PDF में क्यों है या इस तरह से क्यों है, आप उसको किसी भी तरह से रख सकते हैं। द वेरी नेक्स्ट थिंग यू डू इज़ टू क्रिएट योर ऑफर। अब आपको पता है कि आपके पास स्किल भी आ गई है, आपको पता है आपके पास पोर्टफोलियो भी है, योर सैम्पल्स आर रेडी,
टू गो इनटू द मार्केट, और अब आप रेडी हैं कि आप क्लाइंट्स को जाके हंट कर सकें या उनको पिच कर सकें कि दिस इज़ व्हाट आई डू एंड दिस इज़ हाउ आई डू इट। सो अगर आपको ये सर्विसेज चाहिए या फिर इवन इफ यू आर लुकिंग फॉर इट, तो यू कैन एक्चुअली पिच देम। सो मेक श्योर कि यू क्रिएट योर ऑफर, और क्रिएट ऑफर का ये मतलब है कि अब आपने डिसाइड करना है कि आप अपनी सर्विसेज में क्या ऑफर करना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एज अ राइटर sorry, so for example, as a writer I cannot do all the things all alone। ज़रूरी नहीं है कि राइटिंग की जितनी भी फॉर्म्स हैं या राइटिंग की जितनी भी चीज़ें होती हैं मैं सारी की सारी मैं ये किसी को क्लेम करूँ कि मैं वो सब कर सकती हूँ। मैं ब्लॉग भी लिख सकती हूँ, मैं आर्टिकल भी लिख सकती हूँ, मैं वेबसाइट पे भी लिख सकती हूँ, मैं सॉफ्टवेयर्स के लिए भी लिख सकती हूँ। आई कैन नॉट क्लेम दिस एंड यू शुड नॉट एक्चुअली। जब आप क्लियर हो जाएं अपनी स्किल के साथ, अपने पोर्टफोलियो के साथ, तीसरी चीज़ जिसके साथ आपको क्लियर होना है दैट इज़ टू मेक एन ऑफर, जहाँ पे आपको पता हो कि आप एग्जैक्टली क्या चीज़ ऑफर करने वाले हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने ग्राफिक डिज़ाइनर की बात की थी, इफ़ यू हैव डिसाइडेड टू बिकम अ ग्राफिक डिज़ाइनर और आपने वो स्किल अच्छे से सीख ली है, आपको ग्राफिक डिज़ाइनिंग आ गई है, इट कैन बी ऑन एनी प्लेटफॉर्म। अब आपको डिसाइड करना है कि आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग में से क्या ऑफर करना चाहेंगे। क्या आप सिर्फ लोगों के लिए इंस्टाग्राम की पोस्ट बनाना चाहते हैं, या क्या आप लोगों के लिए उनकी वेबसाइट्स डिज़ाइन करना चाहते हैं, या क्या आप एक लोगो डिज़ाइनर बनना चाहते हैं, या आप एक ब्रांड डिज़ाइनर बनना चाहते हैं। व्हाट टाइप ऑफ डिज़ाइनर यू वांट टू बी, बिकॉज ग्राफिक डिज़ाइनिंग अगेन इज़ नॉट अ स्पेसिफिक थिंग। ये बहुत ब्रॉड टर्म है और इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आती हैं जो आप कर सकते हैं। सो द थर्ड थिंग दैट यू हैव टू बी श्योर ऑफ इज़ टू मेक एन ऑफर। आपको पता होना चाहिए कि मैंने एज अ ग्राफिक डिज़ाइनर सिर्फ लोगो डिज़ाइन किया करने हैं और सिर्फ आईजी पोस्ट या लिंक्डइन की पोस्ट या सिर्फ केराउजल्स बनाया करने हैं। दीज आर द थिंग्स आई एम गोइंग टू डू एज अ डिज़ाइनर। जब आप अपने आप को और अपनी स्किल को स्पेसिफाई कर लेंगे कोई दो चार चीज़ों पे, और उस पर बहुत अच्छे से ग्रिप हो जाएगी आपकी और उस पर आपकी एक्सपर्टीज़ बढ़ जाएगी, तो पीपल आर एक्चुअली गोइंग टू प्रेफर यू ओवर अ जेनरिक पर्सन। फिर एक ऐसा पर्सन जो कि आईजी या फिर इंस्टाग्राम की पोस्ट को डिज़ाइन करने का एक्सपर्ट है, और एक ऐसा ग्राफिक डिज़ाइनर है जो ये क्लेम कर रहा है कि ही और शी कैन एक्चुअली डू एवरीथिंग, तो वो एक बहुत जेनरिक पर्सन हो जाता है जो सब कुछ कर सकता है। बट जो एक एक्सपर्ट पर्सन होता है वो अपनी जो उसके स्केल का एरिया होता है या जो उसकी सर्विसेज होती हैं वो फिक्स्ड होती हैं और वो उनमें ही एक्सपर्ट होता है। तो मेक श्योर कि आप अपने लिए जो भी स्किल चूज़ करें, आप उस स्किल में भी मज़ीद अपनी ऑफ़र को स्पेसिफाई कर लें, एंड यू नीड टू नो कि आप इसमें से क्या ऑफ़र करने वाले हैं और क्या ऑफ़र नहीं करेंगे। द नेक्स्ट थिंग यू नीड टू बी श्योर ऑफ इज़ टू प्लान योर प्राइसिंग एंड वर्क टर्म्स। और ये चीज़ें इनको आपने कभी भी अंडर एस्टिमेट नहीं करना, यू हैव टू गो थ्रू इट। और उसमें आपने करना क्या है, आप अपने लिए प्लान करेंगे हाउ डू यू वांट टू गेट पेड, बिकॉज देयर आर सो मेनी डिफरेंट वेज यू कैन बी। आप आवरली पे किया जा सकता है आपको, कि आपको आपके काम के लिए बाय आवर पे किया जाए। आप अपने लिए एक आवरली अमाउंट सेट कर लें। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स से you started with $15 per Ma'am, I'm hour. sorry to interrupt. Excuse me. I'm sorry to interrupt. Please, can you tell me how long the session is? Sorry, hello. Hello, can you ये tell me पूछ how रहे हैं long कि the सेशन कितना session लंबा is? चलेगा। I have just a minute. It was supposed to be from 7 to 8, but Yes, started late, so it that's why is. I'm asking. It is. We are just short of 3 slides. Sorry? I said only 3 slides are left, so it is pretty short. Don't worry. Okay, thank you. So, will we be Okay. done by 9? Before that, inshallah. Oh, okay. Thank you. Okay, so once you have all these three clears that I mentioned above, the next thing you need to be sure of is your planning, is your pricing, is your work terms. आपको पता होना चाहिए कि आप अपनी सर्विसेज के लिए कितना चार्ज करने लगे हैं। जब आप स्टार्ट आउट कर रहे हैं तब आपके चार्जेस क्या होंगे, और जब आप एक्सपर्टीज गेन कर लेंगे या अब आपको बस मार्केट में आए हुए 2 महीने हो गए हैं, 3 महीने हो गए हैं, मे बी यू हैव अ ईयर ऑफ एक्सपीरियंस, अब आपकी प्राइसिंग प्लान क्या होगी, एंड ऑब्वियसली इट नीड्स टू बी डिफरेंट फ्रॉम व्हाट यू स्टार्टेड विद। दैट इज़ द पर्क ऑफ फ्रीलांसिंग कि यहाँ पे आप जब स्टार्ट करते हैं तो आप ऑल्दो एक लो अमाउंट से स्टार्ट करते हैं टू सस्टेन इन द मार्केट, लेकिन जैसे जैसे आपकी एक्सपर्टीज़ बढ़ती है, जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता है, जैसे जैसे आपकी सर्विसेज ग्रो करती हैं, वैसे वैसे आपको अपने प्राइसिंग को चेंज करना पड़ता है। दैट इज़ व्हाट द ग्रोथ इज़।
इन योर फ्रीलांसिंग करियर। इसलिए मेक श्योर कि आप अपने लिए एक सेट अमाउंट ऑफ प्राइसिंग जो है उसको सेट करें, एंड ऑब्वियसली यू कैन स्टडी योर मार्केट अराउंड। आप अपनी मार्केट को स्टडी कर सकते हैं कि वहाँ पे आपकी आपकी जैसी सर्विसेज के लिए क्या रेट्स चल रहे हैं, बिगिनर्स के या फिर इंटरमीडिएट पर्सन के या एक्सपर्ट्स के, और आप उसके अकॉर्डिंगली अपने सेट कर सकते हैं। Okay. The next thing is you need to have some work terms. अब work terms में ये है कि आप अपने लिए खुद सेट करें आपके work का duration कितना होगा. For example, for me, I work Monday to Friday and Saturday and Sunday are always off for me. Although there are some clients जिनको sometimes Saturday को deliver करना पड़ता है आपको काम, या Sunday को करना पड़ता है. That is an exception और आप उसको इस तरह से डिज़ाइन कर सकते हैं अपनी रूटीन को कि आप तब वो काम कर सकें. बट मेक श्योर कि आप अपने लिए एक वर्क प्लान, एक वर्क टर्म सेटअप करें अपने लिए भी और क्लाइंट्स के लिए भी. और ये चीज़ बहुत क्लियर होनी चाहिए आपके और आपके क्लाइंट के दरमियान कि आप कब काम करेंगे, आपके ड्यूरेशन, वर्क का ड्यूरेशन कितना होगा, आप कितनी बार उनके काम को एडिट करके देंगे, या अगर फॉर एग्जांपल यू हैव डन अ प्रोजेक्ट फॉर समवन और अब उनको उसमें कोई चेंजेस कराने हैं तो आप कितनी बार उनको फ्री में चेंजेस करके देंगे. यू आर नॉट गोइंग टू कीप इट फ्री फॉर एवर कि आप उनको बार बार चेंज करके दें एंड एवरी टाइम इट इज़ फ्री. इस तरह नहीं करना होता आपने. फॉर एग्जांपल लेट्स से आप उनकी 3 जो चेंजेस हैं या 3 एडिट्स जो हैं आप उनको फ्री रखते हो, एंड यू मेक इट क्लियर विद योर क्लाइंट कि इन 3 चेंजेस के बाद द नेक्स्ट वन अगर आपको इसके बाद भी कुछ चेंज कराना है तो यू आर गोइंग टू पे मी फॉर दैट. क्योंकि आपका वर्क, क्योंकि आपका टाइम लग रहा है, आपकी एनर्जी लग रही है, और इसलिए आपको उसके लिए पे करवाना पड़ता है खुद को. सो मेक श्योर कि ये सारी चीज़ें क्लियर हों आपके क्लाइंट के साथ, उनको पता हो व्हाट इज़ इंक्लूडेड एंड व्हाट इज़ नॉट इंक्लूडेड इन योर सर्विस. द नेक्स्ट थिंग इज़ जब ये चारों चीज़ें भी होगी, नाउ इज़ द टाइम व्हेन यू कैन एक्चुअली ज्वाइन ऑल द फ्रीलांस प्लेटफॉर्म्स एंड देयर आर मल्टीपल आउट देयर, बट द क्रेडिबल वंस आर अ फ्यू, और उनमें से भी आपने अपवर्क, फाइवर के बारे में बहुत सुना होगा, दैट आर प्रिटी फेमस. सो अपवर्क, फाइवर, गुरु, पीपल पर आवर, फ्रीलांसर, एंड देयर आर मच मोर. इस तरह के प्लेटफॉर्म्स जहाँ पे ज्वाइन करने का आपको एक फ़ायदा ये होता है कि उन प्लेटफॉर्म्स पे आपको क्लाइंट्स को ढूंढना नहीं पड़ता. दे आर ऑलरेडी क्लाइंट्स रिजाइडिंग ओवर देयर. ये प्लेटफॉर्म्स बने ही इस काम के लिए हैं कि वहाँ पे क्लाइंट्स आएंगे और वो ढूंढ रहे होते हैं फ्रीलांसर्स को, और फ्रीलांसर्स उस प्लेटफॉर्म को इसीलिए ज्वाइन करते हैं क्योंकि वहाँ पे क्लाइंट्स होंगे एंड दे कैन एक्चुअली लैंड अ फ्यू क्लाइंट्स एंड दे कैन वर्क विद देम. सो मेक श्योर कि जब आप क्लियर हो चुके हो अपनी स्किल पे, अपनी पोर्टफोलियो पे, ऑफर पे, अपने वर्क टर्म्स पे, सो नाउ यू ज्वाइन ऑल, या ऑल नहीं तो एटलीस्ट दीज टू, इन दोनों को ज्वाइन कर लें आप. इट कुड बी अपवर्क, इट कुड बी फाइवर. आप वहाँ पे अपनी प्रोफाइल्स बना सकते हैं, एंड अगेन प्रोफाइल्स बनाना, प्लीज अपने माइक्स बंद कर लें. सो मेक श्योर कि आप उन प्लेटफॉर्म्स पे प्रोफाइल्स बना लें, मेनली अपवर्क एंड फाइवर, ये दोनों आपके काम अच्छे से आ जाएंगी. और इनको सीखने के लिए अगेन कोई रॉकेट साइंस नहीं है. यू कैन एक्चुअली गो टू यूट्यूब और वहाँ पे मल्टीपल वीडियोस हैं जो आपको कम्प्लीटली सिखा देती हैं फ्रॉम द स्टेप 1 टू क्रिएशन ऑफ योर टिल क्रिएशन ऑफ योर प्रोफाइल कि आपको इसको किस तरह से गो थ्रू करना है. तो आप उनको फॉलो करके अपनी प्रोफाइल्स बना सकते हैं. द नेक्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज टू कीप लर्निंग. Obviously there should not be an end to the learning procedure. अगर आप ये सारी चीज़ें अच्छे से कर पा रहे हैं तो मेक श्योर कि आपका लर्निंग का प्रोसेस जो है वो रेपिटेटिव हो. आप अगर एक अच्छी तरह से परफॉर्म कर रहे हैं एज अ फ्रीलांसर, 3 महीने हो गए, 4 महीने हो गए, नाउ लर्न समथिंग मोर. आप अपनी ऑफर में कुछ और एक्स्ट्रा ऐड करें, कुछ और यूनिक पॉइंट्स ऐड करें जो आपको मजीद स्टैंड आउट करें फ्रॉम अदर फ्रीलांसर्स. दिस इज व्हाट यू नीड टू डू इन फ्रीलांसिंग. नाउ हियर आर अ फ्यू थिंग्स यू डोंट नीड टू डू एट ऑल. उसमें सबसे पहले तो टेकिंग रिजेक्शंस पर्सनली. रिजेक्शन एक ऐसी चीज़ है जो आपको हर जगह फेस करनी पड़ेगी, वेदर इट इज़ फ्रीलांसिंग, वेदर इट इज़ अ जॉब, वेदर इट इज़, ऑब्वियसली आप जॉब्स के लिए जब अप्लाई करते हैं, अपनी सीवीज भेजते हैं, समटाइम्स आपको वहाँ से भी रिजेक्शन फेस करनी पड़ती है. सेम इज़ द केस है फ्रीलांसिंग में भी. आपको समटाइम्स क्लाइंट्स बिल्कुल रिजेक्ट कर देंगे, समटाइम्स आपको घोस्ट कर देंगे बिल्कुल. उन्हें आप याद ही नहीं होंगे बिल्कुल कि आई वॉज इनटू समथिंग विद दिस पर्सन. और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं. इनफैक्ट क्रिटिसिज्म फेस करनी पड़ सकती है आपको. हो सकता है आपका काम किसी को पसंद नहीं आया एंड दे एक्चुअली क्रिटिसाइज यू फॉर दिस. तो इन सारी चीज़ों को आपने पर्सनली नहीं लेना है. यू हैव टू टेक इट एज अ ग्रोइंग पॉइंट. आपने इन चीज़ों को यूज़ करना है फॉर योर पर्सनल ग्रोथ. द नेक्स्ट थिंग इज नेवर हेजिटेट टू हॉप ऑन द पोल.
That फ्रीलांसिंग would एक is ऐसी दुनिया है जहाँ पे सब कुछ डिजिटली हो रहा है, सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है. सो ऑब्वियसली यू कैन नॉट मीट योर क्लाइंट, यू आर नॉट इन वन पर्सन थिंग विद दैट पर्सन. इसलिए मेक श्योर कि आप उनके साथ जब भी बात करें आप प्रेफर करें इस चीज़ को, और इनफेक्ट खुद इनिशिएट करें उनके सामने दैट यू वांट टू हॉप ऑन अ कॉल. आप उनके साथ कॉल पे बात करें, इससे आपकी कम्युनिकेशन पावर, कम्युनिकेशन स्किल्स भी इन्हांस होते हैं, एंड यू लुक मोर क्रेडिबल एंड कॉन्फिडेंट इन फ्रंट ऑफ दैट पर्सन. उस पर्सन को आप ज़्यादा बेटर लगोगे देन अदर पीपल. The third thing is not working on your communication skills as a person, as a freelancer. ये चीज़ आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आपको communication skills आते हों. As I said again, आप एक ऐसे space में काम कर रहे हैं जहाँ पे ना तो client आपको देख पा रहे हैं, ना आप client को देख पा रहे हैं. So it is very crucial कि आपके client के साथ communication skills अच्छे हों और उनको पता हो कि कौन सी चीज़ें आप उनके लिए करके देंगे, कौन सी चीज़ें आप उनके लिए नहीं करेंगे. और communication skills में actually वो सारी चीज़ें आती हैं कि आप उनके साथ अपनी प्राइसिंग भी सेट करें, आप उनके साथ ये चीज़ें भी सेट करें कि आप किस तरह से कौन से मोड ऑफ पेमेंट को यूज़ करना चाहते हैं. इस तरह की सारी चीज़ें जो होती हैं, यू हैव टू कम्युनिकेट इट क्लियरली विद योर क्लाइंट. इसलिए मेक श्योर टू वर्क ऑन योर कम्युनिकेशन स्किल्स ऑलवेज. और इस पे वर्क करने के लिए कोई ख़ास प्रैक्टिस नहीं है सिवाय इसके दैट यू एक्चुअली कम्युनिकेट विद दोस्त क्लाइंट्स. आपके पास चाहे एक क्लाइंट है, दो क्लाइंट है, आप उनके साथ एक्चुअली कम्युनिकेट करो, इन पर्सन करो या कॉल्स पे करो या टेक्स्ट पे करो, किसी भी तरह करो. मेक श्योर यू कम्युनिकेट विद देम. इस तरह आप सीखेंगे कि कौन सी चीज़ें वर्क कर रही हैं और कौन सी चीज़ें वर्क नहीं कर रही हैं. द नेक्स्ट थिंग इज़ नॉट लेटिंग द वर्ड आउट, विच मीन्स अगर आप एक फ्रीलांसर हैं, आपके पास किसी चीज़ की एक्सपर्टीज़ है, आपके पास कोई सर्विस ऑफर करने के लिए, और अगर आपने ये चीज़ इस चीज़ को मार्केट नहीं किया हुआ है, इफ़ यू आर नॉट टेलिंग पीपल कि आप एक अच्छे फ्रीलांसर हैं, आपके पास ये स्किल सर्विसेज हैं, तो हाउ वुड दे नो? नोबडी विल नो यू एग्जिस्ट अनलेस यू टेल देम. इसलिए ज़रूरी है कि अगर आप कोई भी सोशल मीडिया यूज़ कर रहे हैं, बाय द वे सोशल मीडिया इज़ द बेस्ट मीडियम टू डू दिस थिंग. अगर आपके पास इंस्टाग्राम है, अगर आपके पास लिंक्डइन है, अगर आपके पास फेसबुक है, अगर आपके पास ट्विटर है, पिंटरेस्ट है, कुछ भी है, मेक श्योर कि आप वहाँ पे ऐसा कंटेंट जनरेट करें, ऐसा कंटेंट क्रिएट करें दैट शुड लेट पीपल नो कि दिस पर्सन कैन डू दिस थिंग. और बहुत सारे क्लाइंट्स आपको इसी तरह से अप्रोच करेंगे, विच इज़ कॉल्ड पर्सनल ब्रांडिंग बाय द वे. कि आपके पास फॉर एग्जांपल आई हैव अ पर्सनल ब्रांड ऑन इंस्टाग्राम एंड लिंक्डइन, आई यूज़ बोथ, और मैं वहाँ पे कंटेंट शेयर करती हूँ विच इज़ हेल्पफुल फॉर माय क्लाइंट्स एंड फॉर फ्रीलांसर्स एज वेल. सो दे रीच आउट टू मी. उनको पता है दैट शी डू दिस काइंड ऑफ थिंग, दैट इज़ वाई दे रीच आउट टू मी. अगर मैं अपनी एग्जिस्टेंस शो ही नहीं करवाऊंगी, हाउ वुड दे नो आई एम हियर, आई एम सेलिंग दिस टाइप ऑफ सर्विस. सो मेक श्योर यू लेट द वर्ड आउट. Now, the next thing that you never need to do is over delivering. जिस तरह से अंडर डिलीवरिंग नहीं करना होता है आपने, कि आपने जिस चीज़ की कमिटमेंट की है उसको पूरा करना है आपने. इफ़ यू वांट टू सस्टेन इन दिस मार्केट, दिस इज़ व्हाट मेक यू डिफरेंट फ्रॉम अदर फ्रीलांसर्स. कि आपने कभी भी जितना कमिट किया है एटलीस्ट उससे कम नहीं डिलीवर करना है. और ओवर डिलीवरी का मतलब यहाँ पे ये बिल्कुल नहीं है कि आप उनको ज़्यादा अच्छा काम करके दें. ओवर डिलीवरी का मतलब ये है, एज आई सेड अर्लियर, फॉर एग्जांपल आपने किसी के लिए एडिट्स करने हैं, तो इट शुड बी फ्री अंटिल 2 to 3 एडिट्स. उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि अब मेरी टाइम भी जा रही है एंड आई एम एक्चुअली यूजिंग माई एनर्जी टू डू दिस, और मेरी एफर्ट लग रही है. सो मेक श्योर कि उस चीज़ के लिए आप खुद को अनपेड नहीं रखें. आपने खुद को पे करवाना है उसके लिए. कुछ थोड़ी सी ओवर डिलीवरी जो है वो जस्टिफाइबल होती है, जस्ट टू शो कि आप क्लाइंट का काम अच्छे से कर रहे हो, बट मेक श्योर कि आप उनके लिए इतना कुछ फ्री में नहीं कर दें जो कि ओवर डिलीवरी में चला जाए. द नेक्स्ट थिंग इज नॉट चार्जिंग इन एडवांस. अब ये जो बात है नॉट चार्जिंग इन एडवांस, आप एक्चुअली अपवर्क, फाइवर और इस तरह के जो प्लेटफॉर्म्स हैं वहाँ पे शायद ये चीज़ नहीं कर पाए. दिस इज व्हेन यू डील क्लाइंट्स इन पर्सन, या फिर व्हेन यू डील क्लाइंट्स ऑन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स. अगर आपको कोई क्लाइंट्स फेसबुक के थ्रू मिल रहे हैं, इंस्टाग्राम के थ्रू मिल रहे हैं, लिंक्डइन के थ्रू, ट्विटर या किसी भी मीडियम के थ्रू जो कि फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म नहीं है, हमारे कॉमन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, तो वहाँ पे क्लाइंट्स के साथ बिकॉज सोशल जो फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स होते हैं दे गिव यू दिस सॉर्ट ऑफ रिलैक्सेशन कि वहाँ पे सारी चीज़ें ऑटोमेटेड होती हैं और आप कभी भी वहाँ पे स्कैम में नहीं फंसेंगे अनटिल और अनलेस यू आर सो नायब कि आपको पता ही नहीं चला कि कौन सा रेड फ्लैग था या कौन आपके साथ स्कैम कर रहा था. समटाइम्स वहाँ पे भी स्कैम्स होते हैं. बहुत सारी कंपनीज होती हैं जो आपको इस चीज़ पे कन्फेस कराती हैं या इस चीज़ पे कन्विंस कर लेती हैं दैट यू हैव टू ज्वाइन अ सर्टेन चैनल ऑफ टेलीग्राम विद देम,
कि आपको उन्हें कोई ईमेल करनी है, फिर वो आपसे कुछ समटाइम्स वो आपसे मनी मांगेंगे, समटाइम्स आपसे फ्री में काम लेके आपको छोड़ देंगे। तो ये सारी चीज़ें खैर ऑब्वियसली आई कैन नॉट डिस्कस सो मेनी थिंग्स इन अ सिंगल सेशन, बट द थिंग इज़ कि मेक श्योर अगर आप उन फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म पे काम नहीं कर रहे हैं जहाँ पे आपकी प्राइसिंग जो होती है या आपकी जो पेमेंट्स होती हैं वो ऑटोमेटेड होती हैं, सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट। वो आपकी पेमेंट्स को अपने पास रख लेता है वो प्लेटफॉर्म, एंड व्हेन यू आर डन विद द प्रोजेक्ट पहले वो क्लाइंट से ले लेता है आपकी पेमेंट और फिर आप काम कर रहे होते हैं उस प्रोजेक्ट पे, एंड एज सून एज यू आर डन विद योर प्रोजेक्ट तो वो पेमेंट्स जो है वो आपको डिलीवर कर दी जाती हैं। दैट इज़ वाई जो वो तरीका है वो थोड़ा रिलायबल होता है। बट अगर आप सोशल मीडिया पे काम कर रहे हैं, बट एक ड्रॉबैक उसका ये भी है फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स का कि वो आपकी पेमेंट्स को सेफ एंड सिक्योर तो कर रहे हैं बट दे आर एक्चुअली गेटिंग 20% ऑफ इट, बट 20% कमीशन उसमें से खुद रख रहे होते हैं। सो दैट इज़ अ सिंगल ड्रॉबैक देयर which is actually justifiable जब आप स्टार्ट कर रहे हैं। बट व्हेन you स्टार्ट वर्किंग आउट ऑफ दोज प्लेटफॉर्म्स, जब आप बाकी प्लेटफॉर्म्स को यूज़ करने लगते हैं, एज आई सेड जिसमें इंस्टाग्राम हो सकता है, लिंक्डइन हो सकता है, फेसबुक हो सकता है, तो वहाँ पे आपके पास पेमेंट की इस तरह की कोई सिक्योरिटी नहीं है। वो वाले प्लेटफॉर्म्स आपको ये सिक्योरिटी नहीं देते हैं। सो मेक श्योर कि वहाँ अगर आप किसी के साथ अपनी डील फाइनल कर रहे हैं या अपना कोई क्लाइंट फाइनलाइज कर रहे हैं, तो मेक श्योर कि आप उनसे कुछ जो प्राइस है अपनी वो एडवांस में ले लें, और इट कैन बी एक्चुअली 30%। 30% इज़ अ गुड अमाउंट। अगर आप उनसे 30% निकलवा सकते हैं तो उन्हें मेक श्योर उनके ये अगेन ये चीज़ें कम्युनिकेशन में आएंगी कि आप उनके साथ कम्युनिकेट करें दैट दे हैव टू गिव 30% ऑफ द पेमेंट इन एडवांस। तो ये सारी चीज़ें आपने नहीं करनी है, और उनमें से करना क्या है वो मैं आपको बता चुकी हूँ। ओके, सो वेयर कैन यू एक्चुअली फाइंड क्लाइंट्स? जिसमें मैंने आपको बता दिया देयर आर सो मैनी फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स आउट देयर, अपवर्क और फाइवर बीइंग ऑन द टॉप, बट उसके अलावा भी बेशुमार किस्म के फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स हैं। बट फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स अगेन दे डिडक्ट 20% ऑफ योर अर्निंग्स ऑफ योर एफर्ट्स, सो समटाइम्स इट इज़ ह्यूज। लाइक अगर आपने कोई $3000 का प्रोजेक्ट किया है या $4000 का प्रोजेक्ट किया है, अगर आप उसका 20% निकालें तो इट वुड बी अलॉट, वो काफ़ी हो जाता है। दैट इज़ वाई फ्रीलांसर्स जैसे जैसे एक्सपर्टीज गेन करते हैं दे स्टार्ट मूविंग आउट ऑफ दीज प्लेटफॉर्म्स, एज आई डिड। तो मैंने भी यही किया, दैट आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन माई पर्सनल ब्रांड। आई मेड अ बिजनेस अकाउंट ऑन इंस्टाग्राम, a business account on LinkedIn, and I started sharing my content out there, and I started letting people know that I exist और मेरी ये सर्विसेज एग्जिस्ट करती हैं, I as a freelancer exist। तो ये सारी चीज़ें जो हैं उन्होंने मुझे ये फ़ायदा दिया दैट नाउ आई डोंट हैव टू पे एनी सॉर्ट ऑफ कमीशन टू एनी सॉर्ट ऑफ फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स। अब जितनी भी कमीशन, जितना भी प्रोजेक्ट का जो भी रेवेन्यू होता है या उसकी जो भी इनकम होती है, आई गेट 100% ऑफ इट। तो वो चीज़ एक फ़ायदा देती है आपको, और उसके लिए आप ये चारों चीज़ें कर सकते हैं। यू कैन आइदर नेटवर्क विद पीपल, इट कुड बी पर्सनल और प्रोफेशनल, आप अपनी फैमिली फ्रेंड्स लेट देम नो दैट यू आर गिविंग दिस टाइप ऑफ सर्विसेज। इसी तरह आप अपने प्रोफेशनल सर्कल में अपनी मार्केटिंग कर सकते हैं दैट यू आर गिविंग दिस टाइप ऑफ सर्विसेज, या इस तरह की स्किल आपके पास है, सो दैट दे इफ़ नीडेड कैन कॉन्टेक्ट यू। उसके बाद ब्रांडिंग इज़ अ ह्यूज थिंग, और ख़ास तौर पे आज के एरा में अगर आप अब फ्रीलांसिंग स्टार्ट कर रहे हैं, आज से अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं, तो आई वुड सजेस्ट यू, हाईली सजेस्ट यू टू स्टार्ट अ पर्सनल ब्रांड। अ पर्सनल ब्रांड कुड बी एनीवेयर, ज़रूरी नहीं है कि आप इंस्टाग्राम पे ही जाके उसको फॉलो फॉलो नहीं मतलब उसको क्रिएट करें, या आप सिर्फ लिंक्डइन पे रहें, या आप सिर्फ फेसबुक पे रहें। इट कैन बी एनी सॉर्ट ऑफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। बस मेक श्योर कि आप जिस प्लेटफॉर्म को भी चूज़ करें वहाँ पे अच्छा कंटेंट शेयर करें, ऐसा कंटेंट शेयर करें जो आपके क्लाइंट्स को हिट करे, जो आपके उस टारगेटेड पीपल को हिट करे जिनको आप अप्रोच करना चाहते हैं, सो दैट दे नो दैट यू एग्जिस्ट और आपके पास उनकी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन है, सो दे विल ऑटोमेटिकली कम टू यू। फिर क्लाइंट्स आपके पास खुद आते हैं। दैट इज़ द बिगेस्ट प्रो ऑफ दिस पर्सनल ब्रांडिंग। मेरे लिए भी सबसे ज़्यादा इस टाइम जो मेरे क्लाइंट्स हैं दे आर ऑल फ्रॉम लिंक्डइन, a few from Instagram too, but most of them are all from LinkedIn। और मुझे बहुत 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 रेयर होता है कि मुझे किसी को अप्रोच करना पड़े। दे ऑल कम टू मी, वो मेरे पास आते हैं मेरी सर्विसेज को बाय करने के लिए, मेरी ऑफर को बाय करने के लिए। सो आई डोंट हैव टू डू मच, बट अगेन इट इज़ एन एक्सपीरियंस ऑफ फॉर ओवर 3 years। तो ज़रूरी नहीं है कि आपके लिए भी ये चीज़ें पहले दिन से ऐसे ही काम करें, बट इफ़ यू वर्क कंसिस्टेंटली ऑन दीज फ्यू थिंग्स तो यू विल रीच
एट अ पॉइंट जहाँ पे क्लाइंट्स आपको खुद अप्रोच करेंगे. यू कैन एक्चुअली डू कॉल्ड रीचिंग, जिसमें आप लोगों के डीएम्स में जाके जो कुछ टेम्पलेट्स होते हैं या कुछ स्पेसिफिक मैसेजेस होते हैं जो आप उनको कर सकते हैं, अगेन टू पिच योर सेल्फ, उनको बताने के लिए दैट यू एग्जिस्ट. आप different companies को you can look out for different companies and you can call email them. आप उनको emails करते हैं और ये वाला तरीका एक्चुअली बहुत वर्किंग रहा है बहुत सारे फ्रीलांसर्स के, और अभी भी वर्क करता है कोल्ड ईमेलिंग, जहाँ पे आप ऐसी कंपनीज जिनके बारे में आपको पता है दैट दे आर लुकिंग फॉर योर टाइप ऑफ पर्सन, आप उनको कॉल ईमेल करते हैं, अपनी सर्विसेज उनको पिच करते हैं, एंड अल्टीमेटली दे डू अ कॉन्ट्रैक्ट विद यू, या वो आपको अप्रोच कर लेते हैं किसी तरह से. इसी तरह द रेफरेंसेस आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट. अगर आपने किसी क्लाइंट के साथ पहले से काम किया हुआ है या मल्टीपल क्लाइंट के साथ काम किया है तो रीच आउट टू देम और कंसिस्टेंटली उनको रीच आउट करें और उनको बताएं दैट आई एम स्टिल अवेलेबल फॉर दी सर्विसेज. सो इफ़ यू हैव एनीवन जिनको इन सर्विसेज की ज़रूरत होगी तो प्लीज़ लेट देम नो अबाउट मी, सो दे विल लेट देम नो अबाउट यू. और इस तरह से इनफैक्ट रिसेंटली आई लैंडेड अ वेरी ह्यूज प्रोजेक्ट एंड दैट वाज थ्रू अ रेफरेंस, और वो भी मैंने उनको नहीं बोला था, दे रेफर्ड मी टू समवन और उन समवन ने फिर मुझे खुद ही कांटेक्ट किया. सो दीज आर अ फ्यू थिंग्स, और ये सारी की सारी वर्क करती हैं until or unless you are consistent and you put your right efforts, और आप उसी तरह स्ट्रैटेजिकली चलें जैसे मैंने आपको बताया था. अगर आप स्किल सीखने के फ़ौरन बाद इन चीज़ों पे जंप करेंगे तो आपको रिजल्ट्स नज़र नहीं आएंगे, आपको कोई काम नहीं मिलेगा, आप अल्टीमेटली आप डिप्रेशन का शिकार हो जाएंगे कि ये चीज़ें बाकियों के लिए तो काम कर रही हैं, मेरे लिए क्यों नहीं कर रही. सो मेक श्योर कि आप स्ट्रैटेजिकली चलें, स्टेप बाय स्टेप उन्हीं स्टेप्स को फॉलो करते हुए जैसे मैंने शेयर कर दिया उस तरह से अगर आप इस पे पहुंचेंगे तो इट इज़ एक्चुअली गोइंग टू हेल्प यू. And last but not the least, if you want to reach out to me, if you have any questions, obviously बहुत सारी चीज़ें जो मैं एक सेशन में शेयर नहीं कर सकती थी, इट इज़ वेरी वेरी लिमिटेड. सिर्फ फ्रीलांसिंग के टॉपिक पे बोलने के लिए भी 3-4 घंटे चाहिए होंगे, बट आई ट्राई टू कंपाइल इट इन अ सिंपल वे कि आपको समझ आ जाए कौन सी चीज़ें कहाँ से आप स्टार्ट कर सकते हैं एंड वेयर यू कैन एक्सपेक्ट टू गो. सो इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस या अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन हो, आपको कुछ भी हेल्प चाहिए हो, वेयर आई एम नीडेड. Miss, I have a question. श्योर. Miss, you said that when you're doing graphic designing, you can do work for other Instagram pages and make their posts. Yes. So how you get connected to other Instagram pages? Sorry. How can I get connected to Instagram pages? Okay, it is not about getting connected. Again, आप जिन Instagram pages को connect करना चाहते हैं या जिनको आप as a graphic designer आप जिनको serve करना चाहते हैं, you have to see, सबसे पहले तो you have to see if they are hiring for it. और अगर वो hire कर रहे होंगे तो obviously they are going to use a medium for it. वो या तो Upwork पेज के बारे में post करेंगे, either they are going to post वो किसी भी freelancing platform पे post करेंगे, या फिर वो LinkedIn पे post करेंगे, या even वो उससे Instagram के ही अपने पेज पे पोस्ट करेंगे दैट दे आर लुकिंग फॉर अ डिज़ाइनर, या फिर उनको किसी डिज़ाइनर की ज़रूरत है. नाउ इज़ द थिंग, अब अगर आप उनको जाएँ और आप उनको बताएं जाके कि आई एम अ ग्राफिक डिज़ाइनर और मुझे ये चीज़ें आती हैं, आई कैन एक्चुअली सर्व यू, बट योर पर्सनल पेज इज़ एम्प्टी. अगर वो आपकी प्रोफाइल आके देखेंगे और इस पर कुछ भी नहीं है तो दैट इज़ नॉट गोइंग टू लुक वेरी गुड in their eyes. That is why I said you need to have a personal brand for whatever you do. For example, I am a writer, और अगर आप मेरे लिंक्डइन पे जाएँ और अगर आप मेरे इंस्टाग्राम पे जाएँ या दोनों में से किसी भी जगह जाएँ, यू कैन एक्चुअली सी देयर अ लॉट ऑफ कंटेंट, और आपको पता लगेगा. और कोई भी पर्सन जो मुझे अभी हायर नहीं भी करना चाहता है एंड हैव जस्ट लैंडेड ऑन माई पेज, और वो सिर्फ अगर मेरे प्रोफाइल को या मेरी फीड को स्क्रॉल करें तो उनको पढ़ते साथ ही या देखते साथ ही समझ आएगी कि ओके दिस इज़ अ राइटर, ये एक राइटर है जो राइटिंग की सर्विसेज देता है, बिकॉज दैट इज़ हाउ आई डिज़ाइन माई पोस्ट. इसी तरह अगर कोई डिज़ाइनर है, फॉर एग्जाम्पल ग्राफिक डिज़ाइनर है, खासतौर पे इंस्टाग्राम का अगर कोई डिज़ाइनर है तो उसके लिए तो बहुत ज़रूरी है कि उसका एक पर्सनल इंस्टाग्राम पेज हो जहाँ पे वो डिज़ाइन करता हो वो चीज़ें, ताकि जब क्लाइंट्स उसको रीच आउट करें तो उनको नज़र आए कि ओके इस पर्सन की प्रोफाइल तो ऐसी है और ये इस तरह की चीज़ें डिज़ाइन कर लेता है. सो दे माइट एंड अप हैविंग यू. अच्छा, इसी के फॉलो अप में मेरा एक क्वेश्चन है. जी जी. जैसे मैं भी ग्राफिक डिज़ाइनिंग करता हूँ और रिसेंटली मैं फ्री पिक पे डाल रहा हूँ चीज़ें, टेम्पलेट्स बना के और वगैरह वगैरह. ये रिसेंटली मैंने यूट्यूब भी स्टार्ट किया. और इसके अलावा एक चीज़ मैंने ये पूछनी थी, मैं लिंक्डइन पे ट्राई करता हूँ, वहाँ पे मतलब कनेक्शंस बनाता हूँ, पोस्ट वगैरह करता हूँ.
तो लिंक्डइन में हम जो है क्या कहते हैं किस तरह की पोस्ट्स करें टू अट्रैक्ट द मासेस, या तो हम अपनी जैसे बीहेंस की या ड्रिबल की हमारी पोर्टफोलियोज होती हैं, या तो हम लोग वो चीज़ शेयर करें, या हम लोग डायरेक्ट हमारे जो कोई चीज़ बनाई है, मॉक प्रोजेक्ट्स हो गए हमारे, पोस्टर मॉकअप्स हो गए, या कोई भी चीज़ होगी, अगर वो चीज़ हम लोग उसके ऊपर अपलोड करें तो क्या चीज़ बेहतर रहेगी? ओके, सो अबाउट पोर्टफोलियोज, चाहे वो बिहांस पे हो, ट्रिबल पे हो, कहीं भी हो, पोर्टफोलियोज आर थिंग जहाँ जिसको आप अटैच कर सकते हैं। आप सिंपली उसको अपने इंस्टाग्राम के लिंक वाली जगह पे भी अटैच कर सकते हैं, इसी तरह आप अपने लिंक्डइन पे भी उसको अटैच कर सकते हैं। सो दैट इज़ नॉट अ थिंग जिसको आप बार बार शेयर कर सकते हैं। नाउ टू मेक योर सेल्फ क्रेडिबल, आपको वहाँ पे कंटेंट शेयर करना पड़ेगा। अब कंटेंट क्या हो सकता है, एज यू सेड कि आप एक ग्राफिक डिज़ाइनर हैं और आप लिंक्डइन पे भी हैं। लिंक्डइन इज़ एक्चुअली अ वेरी ह्यूज प्लेटफॉर्म, और वहाँ पे ये सारी अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो आपको 10 times बेटर मिलेंगी एज कम्पेयर टू अदर फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स। आई एट लीस्ट आई थिंक सो, बिकॉज आई हैव एक्सपीरियंस्ड इट। आपने एज अ ग्राफिक डिज़ाइनर क्या करना है, यू वांट टू, नाउ दिस इज़ वेयर यू हैव टू डिसाइड कि आपकी टारगेट ऑडियंस कौन होगी। आप दूसरे ग्राफिक डिज़ाइनर्स को अट्रैक्ट करना चाहते हैं, या आप ऐसी कंपनीज को अट्रैक्ट करना चाहते हैं जिनको ग्राफिक डिज़ाइनर्स की ज़रूरत होगी। फॉर एग्जांपल आप कोई ऐसे क्रिएटर्स को, फॉर एग्जांपल वहाँ पे बहुत सारे इंस्टाग्राम क्रिएटर्स हैं, आप उनको अट्रैक्ट करना चाहते हैं दैट दे शुड सी कि आप किस तरह की चीज़ें क्रिएट कर पाते हैं, एंड देन दे माइट हायर यू। सो द थिंग इज़ कि आपको इस तरह का कंटेंट शेयर करना है। और अब क्योंकि आप डिज़ाइनर हैं तो दैट पार्ट शुड बी विजिबल इन योर डिज़ाइंस। फिर आप चाहे वहाँ पे केराउजल्स शेयर कर रहे हैं, चाहे आप वहाँ पे सिंपल सिंगल पोस्ट शेयर कर रहे हैं, इट शुड बी क्लियरली विजिबल इन योर डिज़ाइन कि आप डिज़ाइनर हो। वहाँ पे आपका सारा का सारा फोकस उस पोस्ट में आपके डिज़ाइन पे होना चाहिए, ताकि देखने वाले को समझ आ जाए। और अबाउट द कंटेंट, कि आप किस टाइप का कंटेंट शेयर करें, तो एज आई सेड, अब जो कंपनीज ग्राफिक डिज़ाइनर्स ढूंढ रही होंगी, ऑब्वियसली उनकी कुछ डिमांड्स होती हैं। अब फॉर एग्जांपल आप लिंक्डइन पे ही हैं, और अगर आपने लिंक्डइन का जॉब्स का सेक्शन देखा हो और वहाँ पे आपने कभी कोई ऐसी जॉब देखी हो जो किसी ग्राफिक डिज़ाइनर के लिए ढूंढ रहे हो, या दे आर लुकिंग फॉर अ डिज़ाइनर, गो थ्रू देयर डिस्क्रिप्शन। आप उनकी डिस्क्रिप्शन से जब गुजरेंगे ना, या उस डिस्क्रिप्शन को पढ़ेंगे, उनकी जॉब डिस्क्रिप्शन को, कि उनके रिक्वायरमेंट्स क्या है, यू शुड लुक ऑल दोज थिंग्स इनटू योरसेल्फ। उनकी कुछ खास रिक्वायरमेंट्स होंगी कि हमें ऐसा ग्राफिक डिज़ाइनर चाहिए जिसको ये भी आता हो, ये भी आता हो, ये भी आता हो, ये भी आता हो। नाउ यू हैव टू सी इन योरसेल्फ कि आपको क्या वो सारी चीज़ें आती हैं, और अगर आपको नहीं आती हैं तो दैट इज़ अ प्लस पॉइंट फॉर यू, कि अब आप जाके वो चीज़ सीख सकते हैं। और जो चीज़ें उन्होंने बताई है ना कि हमें ये चीज़ें चाहिए, यू कैन एक्चुअली लिस्ट देम आउट, और आप उस पर कॉन्टेंट बना सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आप क्या कहते हैं उसको, आप मॉकअप्स शेयर कर सकते हो अपने, आप ऐसे ट्यूटोरियल्स शेयर कर सकते हो जिसमें आप ये दिखाओ कि आप किस तरह डिज़ाइन करते हो अपनी पोस्ट को, किस तरह से शेड्यूल करते हो, कौन सा ऐप यूज़ कर रहे हो आप उस वहाँ पे जाके कौन से एलिमेंट्स यूज़ कर रहे हो, आप उनको प्लेस कैसे कर रहे हो। आप इस तरह की सारी चीज़ें करके, ट्यूटोरियल्स वुड बी वेरी गुड फॉर यू अगर आप डिज़ाइनर हो। फॉर एग्जाम्पल आई एम अ राइटर, तो मेरा पूरा का पूरा फोकस जो होता है पोस्ट में वो सिर्फ कंटेंट पे होता है कि मैं उसके अंदर कैसा कंटेंट लिखने लगी हूँ। मुझे इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता है कि इसका डिज़ाइन कैसा होगा, बिकॉज दैट इज़ नॉट व्हाट आई एम लुकिंग फॉर। आई एम लुकिंग फॉर फेलो राइटर्स, या मुझे ऐसे लोग चाहिए जो राइटिंग के लिए ढूंढ रहे हैं। सो ऑब्वियसली आई विल फोकस मोर ऑन कंटेंट साइड। लेकिन आप डिज़ाइनर हैं तो आपका सारा का सारा फोकस डिज़ाइनिंग पे होना चाहिए, वेदर इट इज़ योर पोस्ट, whether it is your tutorials, whether it is your mockups, आप जो भी शेयर कर रहे हो, मेक श्योर कि वो चीज़ क्लियरली हाईलाइट कर रही हो कि आप किस तरह से डिज़ाइन करते हैं, या आपकी डिज़ाइन स्ट्रैटेजी क्या है, या आपका डिज़ाइन माइंडसेट क्या है। वो सारी चीज़ें आपके उस डिज़ाइन से क्लियर होनी चाहिए। इज इट मैम क्लियर? एक क्वेश्चन है। यस। दरअसल जो सबसे ज़्यादा मुश्किल चीज़ होती है इनिशियली जब आप फ्रीलांसिंग शुरू करते हो, हमारे या मेरे लिए जो सबसे ज़्यादा मुश्किल चीज़ है वो ये है कि इनिशिएट कैसे करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल, ओके। जब आप फाइवर पे, अपवर्क पे प्रोफाइल्स बनाते हो, अपनी डिस्क्रिप्शंस देते हो, तो कुछ हम एग्जांपल्स देखते हैं, फाइवर पे देखते हैं, अपवर्क पे देखते हैं या बिहास पे देखते हैं, तो उन्होंने काफ़ी लंबे चौड़े डिस्क्रिप्शंस दिए होते हैं अपनी क्वालिफिकेशंस के और अपने काम के। तो और कई जगह पे देखते हैं तो काफ़ी लंबे नहीं होते हैं, लाइक छोटे से डिस्क्रिप्शंस होते हम्म। हैं। तो कौन सी चीज़ इफेक्टिव है इस चीज़ में? ओके, यहाँ पे एक्चुअली आई कैन रिलेट, बिकॉज व्हेन आई स्टार्टेड आउट, या मेरी जो भी स्किल थी, जब मैंने सिंपल राइटिंग से स्टार्ट किया था, और फिर व्हेन आई वेंट टू अपवर्क और फाइवर, किसी भी प्लेटफॉर्म पे जाती थी, एंड व्हेन आई लुक इनटू देयर डिस्क्रिप्शंस,
तो उनकी डिस्क्रिप्शन पढ़ के मुझे पता लगता था कि ओह मुझे तो ये चीज़ भी नहीं आती, मुझे तो ये चीज़ भी नहीं आती, जो उनके डिमांड्स हैं या जो उनके रिक्वायरमेंट्स हैं। सो व्हाट वुड आई डू इन दैट सिचुएशन, मैं हमेशा ऐसे करती थी, जो चीज़ें मुझे नहीं आती थी आई इमीडिएटली गो टू गूगल या यूट्यूब या जो भी मेरे पास उस टाइम मीडियम अवेलेबल होता था, और मेरी सबसे पहली कोशिश यही होती थी कि वो जो चीज़ मेरे स्किल सेट में मिसिंग है या मेरी सर्विसेज में मिसिंग है, सबसे पहले तो मुझे वो आनी चाहिए। तो आई वुड गो टू यूट्यूब मोस्ट ऑफ द टाइम, या फिर इवन गूगल पे मैं ब्लॉग्स पढ़ के बहुत सारी चीज़ें सीख लेती थी। तो मैं उन चीज़ों को सीख लेती थी, और अब जब मैं डिस्क्रिप्शंस पढ़ती हूँ तो ऑब्वियसली दे हैव ऑल दोज थिंग्स जो मुझे ऑलरेडी आती होती हैं, तो मुझे मसला नहीं होता। द थिंग इज डिस्क्रिप्शन अगर लंबी है और अगर उसमें ऐसी चीज़ें हैं जो आपको देख के लग रहा है कि आपको नहीं आती, दैट मीन्स यू नीड टू वर्क ऑन दोज थिंग। आपको उन सारी चीज़ों पे काम करना है पहले, और अगर आप उस पर काम करके अपने आप को अपस्किल कर लेंगे, दैट इज़ गोइंग टू बी अ प्लस पॉइंट फॉर यू, क्योंकि अब आपने अपने स्किल को एक रेगुलर स्किल से या बहुत बेसिक स्किल से उठा के उसको थोड़ा एडवांस्ड कर दिया, क्योंकि आपने उसमें कुछ और ऐड कर दिया, आपने अपनी ऑफर को मज़ीद इवॉल्व कर दिया, मज़ीद एक्सक्लूसिव कर दिया। सो आई वुड सजेस्ट कि वो जो डिस्क्रिप्शन होती हैं वो तो बहुत अच्छी चीज़ होती हैं। इनफैक्ट मैंने लिंक्डइन की डिस्क्रिप्शन भी इसीलिए मेंशन की है, बिकॉज आई स्टिल डू दिस। बहुत सारी चीज़ें होती हैं डिस्क्रिप्शन में, उनकी रिक्वायरमेंट्स में, जो आपको नहीं आती होती है, तो सबसे पहला काम यही करें, आप फ़ौरन से जाएँ यूट्यूब पे वीडियोस देखें, यूडेमी पे जाएँ, उस पर कोई भी फ्री कोर्स पढ़ा हुआ है, आपको कुछ भी मिल रहा है, जस्ट गो आउट देयर और उसको लर्न करें, ताकि आप अपने स्किल में मज़ीद एक्सपर्ट हो जाएँ और आपकी जो स्किल सेट में जो सर्विसेज आप ऑफर कर रहे हैं वो मज़ीद अच्छी हो जाए, और आपको इस पॉइंट पे आना है कि आप कुछ भी ना रह जाए जो आपको नहीं आता हो, एटलीस्ट अपनी नीश में या अपने स्पेसिफिसिटी में। द सेकंड थिंग इज़ कि अगर कोई ऐसी डिस्क्रिप्शन है जो कि इतनी डिटेल्ड नहीं है और आपको समझ नहीं आ रही है कि आपको उसके लिए क्या करना है, तो दिस इज़ वेयर योर कम्युनिकेशन कम्स इन। आपको अगर अच्छे से कम्युनिकेट करना आता है तो नाउ, जब फॉर एग्जांपल अगर आप अपवर्क पे काम कर रहे हैं और वहाँ पे ऐसी कोई जॉब है जिसकी डिस्क्रिप्शन इतनी अच्छी नहीं है, एंड दे आर लुकिंग फॉर लेट्स से ग्राफिक डिज़ाइनर, लेकिन उन्होंने कोई खास रिक्वायरमेंट्स नहीं लिखी, दिस इज़ व्हाट यू विल पुट इनटू योर प्रपोजल। अब आप अपने प्रपोजल में उनसे क्वेश्चन करेंगे कि व्हाट आर योर रिक्वायरमेंट्स, आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस प्रोजेक्ट के एंड पे, या इस प्रोजेक्ट के डिलीवरेबल्स क्या हैं। ये सारी चीज़ें अब आपने उनसे निकलवानी है अगर उसने खुद नहीं लिखी। तो समटाइम्स ऑब्वियसली दे आर गोइंग टू गिव यू ऑल द डिटेल्स, तो तभी आपके लिए फ़ायदा है। और अगर आप उन्होंने आपको डिटेल्स नहीं दी हुई, तो यू कैन एक्चुअली यूज़ दैट पॉइंट इन योर फेवर, और आपने वो चीज़ें उनसे क्वेश्चन करनी है, और इस तरह से उनको ज़्यादा क्रेडिबल लगेंगे आपके, ओके इस पर्सन ने ये चीज़ नोटिस की है या इसने ये चीज़ याद रखी है कि यहाँ पे ये चीज़ें मिसिंग थी, तो दे आर एक्चुअली आस्किंग फॉर इट। तो इस तरह के प्रपोजल्स जो होते हैं वो हमेशा विन करते हैं, दे आर मोर लाइकली टू गेट एन इंटरव्यू कॉल या फिर गेट येस फ्रॉम क्लाइंट्स। तो मेक श्योर कि आप दोनों चीज़ों को इस तरह से यूज़ करें। अगर तो आपको डिस्क्रिप्शन में ऐसी चीज़ें मिल रही हैं जो आपको नहीं आती बट यू वांट टू गो फॉर इट, तो पहले आप जाएँ, फ़ौरन गूगल पे जाएँ, फ़ौरन यूट्यूब पे जाएँ, उस चीज़ का बेशक बेसिक्स ले लें बट उसका आइडिया ले लें, और उसके बाद नाउ यू कैन कम बैक टू दैट जॉब, और आप उसके अप्लाई कर सकते हैं कॉन्फिडेंटली, क्योंकि एटलीस्ट आपको उसके बेसिक्स पता लग गए हैं। और अगर उसमें कुछ मिसिंग है तो यू कैन आस्क फॉर इट, आप उसको खुद क्वेश्चन करो ताकि आपको वो चीज़ें क्लियर हो जाए। और मैम मेरा एक सवाल है कि इंस्टाग्राम पे आप पर्सनल ब्रांडिंग का बता रही थी, तो मेरे ख्याल के मुताबिक तो पर्सनल ब्रांडिंग में यही है कि टिप्स एंड ट्रिप्स शेयर करते हैं, मुख्तलिफ हम स्टफ शेयर करते हैं इंस्टाग्राम पे। इससे होता ये है कि न्यूबीज बिगनर्स जो होते हैं ना, फ्रीलांसर, वो आपके अकाउंट में आते हैं, आपको फॉलो करते हैं, आपसे चीज़ें सीखते हैं। तो इससे हमें क्या फ़ायदा होगा? मसलन नो नो, पर्सनल ब्रांडिंग असल में है क्या? ओके, पर्सनल ब्रांडिंग ये नहीं है कि मैं अट्रैक्ट करूँ अपने जैसे ही फ्रीलांसर्स को, या अपने जैसे ही न्यूबीज़ या जो भी अभी स्टार्ट आउट कर रहे हैं कि वो आएँ और मुझसे सीखें। पर्सनल ब्रांडिंग को आप जिस तरह से मोल्ड करना चाहेंगे ये वैसे ही मोल्ड हो जाएगी। मेरा पेज जो है दैट इज़ कम्प्लीटली टारगेटेड टूवर्ड्स फ्रीलांसर्स, जिसका सिर्फ और सिर्फ मकसद ही ये था उसको स्टार्ट करने का, सो दैट आई कुड हेल्प अदर फ्रीलांसर्स जो कि स्टार्ट आउट कर रहे हैं या जिनको फ्रीलांसिंग में जो जो इश्यूज हो सकते हैं किसी को। तो आई न्यू ऑल दोज इश्यूज, क्योंकि मैंने वो खुद की थी चीज़, तो मुझे पता था ये इश्यूज हो सकते हैं, सो आई एड्रेस देम ऑल ऑफ देम इन टू माई पोस्ट। लेकिन अगर आप एक ऐसा पर्सनल ब्रांड शुरू करना चाहते हैं या आप एक ऐसा पर्सनल ब्रांड बनाना चाहते हैं जहाँ पे आपकी टारगेट ऑडियंस आपके जैसे फ्रीलांसर्स नहीं बल्कि आपके क्लाइंट्स होंगे, ऐसे क्लाइंट्स जो आपको हायर करें, तो फिर आपने कंटेंट भी वैसा शेयर करना होता है। फॉर एग्जांपल अगर मुझे
ऐसे लोगों को अट्रैक्ट करना होता अपने इंस्टाग्राम पे जो कि मुझे राइटिंग के लिए हायर करते या जो मुझे मेरी सर्विसेज के लिए हायर करते, तो फिर मैंने फ्रीलांसिंग से रिलेटेड कोई चीज़ शेयर नहीं करनी थी। मैंने क्या शेयर करना था कि मेरा राइटिंग प्रोसेस कैसा होता है, मैं किस तरह ऐसे ब्लॉग लिख लेती हूँ जो कि रैंक करते हैं या जो इतने अच्छे रिजल्ट जनरेट करके देते हैं, या फिर इस तरह की सारी चीज़ें होती जो कि मेरे क्लाइंट्स के मसले हैं। फिर मैं उनके मसलों को स्टडी करती कि मेरे क्लाइंट्स जब राइटिंग कर रहे होते हैं या अपनी वेबसाइट पे कोई चीज़ जो उनको चाहिए, वहाँ पे उनकी क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, फिर मैं वो वाली सारी चीज़ें शेयर करती ताकि मैं उनको हिट कर सकूँ और उनको टारगेट कर सकूँ। और इनफैक्ट जो हमारे प्लेटफॉर्म्स हैं उनका एल्गोरिदम भी ऐसे ही है, आप जिस तरह का कंटेंट बनाते हैं वो आपको उसी तरह के लोगों के साथ अटैच कर देता है या उसी तरह के लोग आपको कनेक्ट कर पाते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मैं फ्रीलांसर्स के लिए ही अगर बना रही हूँ इंस्टाग्राम पे कंटेंट, तो माय इंस्टाग्राम ऑलवेज विल शो अप दिस टाइप ऑफ कंटेंट टू ऑल दोज पीपल जो इस तरह की चीज़ें सर्च आउट करते हैं। इसी तरह अगर मैं ऐसा कंटेंट शेयर करने लग जाऊँ जिसके लिए कंपनीज लुकआउट कर रही होती हैं या जो कंपनीज की रिक्वायरमेंट्स या उनके मसले होते हैं या फिर उनके इश्यूज होते हैं जिनको वो सॉर्ट करना चाहते हैं उस फ्रीलांसर को हायर करके, तो अगर मैं उस तरह का कंटेंट जनरेट करने लग जाऊँ तो मैं जो मेरा सोशल प्लेटफॉर्म है ऑटोमेटिकली मुझे उन लोगों के साथ कनेक्ट करने लग जाएगा और उन लोगों को मेरी प्रोफाइल शो अप करने लग जाएगा, सो दैट दे नो दैट आई एग्जिस्ट। दिस इज हाउ इट वर्क्स। ये ऐसे नहीं होता है कि आप उसको बनाएंगे तो अपने जैसे ही लोगों को अट्रैक्ट करेंगे, ऑब्वियसली उससे आपको क्या फ़ायदा होगा, दे आर अल्टीमेटली गोइंग टू लर्न फ्रॉम यू, लेकिन आप उनसे कोई अर्निंग सोर्स नहीं बना सकते, इनकम सोर्स नहीं होगा। सो टू मेक श्योर कि आपका पर्सनल ब्रांड आपके क्लाइंट्स के लिए हो, आपके फेलो फ्रीलांसर्स के लिए नहीं, उसके लिए आपको अपने कंटेंट में चेंजेस करनी पड़ेंगी और अब आपने वैसा कंटेंट शेयर करना है जो कि आपके क्लाइंट्स को हिट करे, और उसमें वही सारा कंटेंट हो सकता है जो आपके क्लाइंट्स के इश्यूज होते हैं या जो भी उनकी प्रॉब्लम्स होती हैं। एज फॉर एग्जांपल एक कंपनी जिनको डिज़ाइनर चाहिए तो उनकी क्या रिक्वायरमेंट्स हो सकती हैं या उनको अपने कंपनी के डिज़ाइनिंग में क्या क्या इश्यूज हो सकते हैं, आप उन चीज़ों को एड्रेस कर सकते हैं ताकि उनको पता लगे दैट यू नो द सोल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम। दिस इज हाउ मैम इट एक वर्क्स। सवाल है। So it's like I have been seeing कि mostly people regarding the writing सॉरी domain of आपकी freelancing, आवाज़ डिस्टॉर्ट हो रही है। mostly people who are in the uh, writing domain of freelancing always are posting related stuff like how to get to the into the market of writing domain like content writing or sales writing or all those kinds of writing, but they don't really share up the process of how it's happening with the writer, right, and how the communication is happening between the The writer client. and the client, right? So Right. उसमें जो है we only see content from different Instagram users who are quite famous as well right now, but they end up just mentioning how can we learn those skills and like what could be the price range or the growth career opportunities and stuff like that, and not exactly the ongoing process, the inner workings and the thought processes of the writer during that doing that Okay. project, right, for the client. So what do you have to say upon that? Okay. So there can be so many opinions on this. लेकिन I would say, for example, आप एक ऐसे person हैं जो कि इस चीज़ में comfortable नहीं है, that you want to show people your communication with your clients या आपका exact process क्या है, बहुत सारे लोग वाकई इसको share नहीं करते हैं। मे बी दे आर स्केप्टिकल अबाउट इट कि वो इन चीज़ों को फ्री में शेयर नहीं करना चाहते या कोई जो भी रीजंस हो सकती हैं उनकी, मे बी दे आर नॉट कंफर्टेबल इस तरह की चीज़ें। एक चीज़ तो ये है कि अगर दे आर नॉट डूइंग इट या अगर वो इस तरह की चीज़ें शेयर नहीं कर रहे तो आई वुड सजेस्ट कि प्लीज़ आप रिलाई भी नहीं करें उन पे। इफ़ दे आर नॉट डूइंग इट तो देयर आर सो मेनी अदर सोर्सेज एज वेल। फॉर एग्जांपल आप उन क्रिएटर से नहीं सीख पा रहे, आप उन इन्फ्लुएंसर से अगर आपको वो चीज़ नहीं मिल रही जो आप एब्जॉर्ब करना चाहते हैं या जिसकी आपको ज़रूरत है, सो उनको छोड़ दें, उन पर रिलाई करना छोड़ दें। देयर आर सो मेनी अदर सोर्सेज, जैसे मैंने आपको बताया देयर आर सो मेनी लर्निंग प्लेटफॉर्म्स और इसी तरह बहुत सारे सोशल प्लेटफॉर्म्स हैं जिनसे जाके आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। सो लुक इनटू डिफरेंट डायरेक्शन। ज़रूरी नहीं है कि आपको एक बंदा मिल गया आप उसको फॉलो कर रहे हैं एंड ही और शी इज़ शेयरिंग एवरीथिंग दैट यू नीड, और उन्होंने अब एक चीज़ शेयर नहीं की और ऑब्वियसली उनको तो नहीं पता होगा कि आपको इस चीज़ की भी ज़रूरत है। मे बी दे नो, मे बी दे डोंट नो। द थिंग इज़ यू डोंट हैव टू रिलाई ऑन देम। एक सोर्स से काम नहीं बन रहा है, दूसरे सोर्स पे जाएँ, दूसरे सोर्स से काम नहीं बन रहा है, तीसरे सोर्स पे जाएँ। सो यू कैन टेक इट लाइक दिस। और दूसरी बात आपने आगे पूछा था?
like how to get the inner workings of the writer during the project, and उसके जो between जो editables होते हैं like ओके the जी ओके सो एक चीज़ तो ये होगी कि आप उन पे ऑब्वियसली रिलाई करना छोड़ सकते हैं एंड यू कैन मूव टुवर्ड डिफरेंट सोर्सेज द सेकंड थिंग इज यू कैन डू इट पर्सनली प्रैक्टिकली आप इसको खुद इसमें इन्वॉल्व हो इस प्रोसीजर में एक अच्छा तरीका जो मैं हमेशा अपने फॉलोअर्स एंड सब कुछ कहती होती हूँ कि आप ऐसे क्या करें इफ़ यू हैव रिटन समथिंग आपको उसके लिए अब गाइडेंस चाहिए ऑब्वियसली मेंटोरशिप इज अ थिंग जो आपको हमेशा चाहिए होती है यू नीड गाइडेंस और आपने ये चीज़ देखनी होती है कि मैं जो कर रहा हूँ वो आइदर सही जा भी रही है या नहीं जा रही सो आई ऑलवेज सजेस्ट मैम कि जब आप इस तरह कर लेते हैं आपने कोई काम किया आपको उस पर सजेशंस चाहिए एडवाइसेस चाहिए तो आप या तो किसी ऐसी कम्युनिटी को ज्वाइन करके रखें पहले से फॉर एग्जांपल देयर आर सो मेनी फेसबुक ग्रुप्स आउट देयर हर चीज़ के लिए डिज़ाइनर्स के लिए वेबसाइट डेवलपर्स के लिए राइटर्स के लिए हर टाइप की कम्युनिटी आपको फेसबुक ग्रुप्स में मिलेगी और अच्छी वाली कम्युनिटी मिलेगी जहाँ पे लोग आपको एक्चुअली हेल्प आउट करते हैं आप उनसे कोई सवाल पूछें वो आपको जवाब देते हैं या वहाँ पे आप कोई इशू अपना लेके जाएं तो वो आपको सॉर्ट आउट करके देते हैं देर आर ऑलवेज हेल्पिंग पीपल आउट देयर तो इसलिए आप किसी ना किसी कम्युनिटी का पार्ट ज़रूर बन के रहें वेदर इट इज़ ऑन फेसबुक वेदर इट इज़ ऑन लिंक्डइन कहीं भी हो सकती है वो कम्युनिटी जस्ट बी अ पार्ट ऑफ इट उसमें एक्टिव रहें और वहाँ पे जाके लोगों से अपनी सजेशंस लें और ख़ास तौर पे एक और तरीका जो आप कर सकते हैं यू कैन एक्चुअली आस्क सम सीनियर्स जिनका आपको पता है कि वो इस चीज़ में थोड़े एक्सपर्ट हैं आप उनको एक अच्छा डेडिकेटेड मैसेज लिखो फॉर एग्जांपल अब मुझे जैसे बहुत सारे मैसेजेस आते हैं वेयर पीपल हैव सम वर्क एंड दे वांट मी टू रिव्यू इट और ऑब्वियसली मेरे लिए इम्पॉसिबल होता है कि मैं सबके लिए वो कर सकूं सो आई ऑलवेज डू दिस ओनली फॉर दोस्त जिन्होंने एक बहुत अच्छा सा डेडिकेटेड मैसेज लिखा होता है दिस they kind of show some sincerity उनके उस मैसेज से रिस्पेक्ट या सिंसेरिटी नजर आ रही होती है एंड दे नो दैट दे वैल्यू माई टाइम और उनको पता होता है कि मैं जो टाइम उनको देने जा रही हूँ दे आर गोइंग टू वैल्यू इट तो मैं उनकी हमेशा हेल्प करती हूँ एंड आई ट्राई माई बेस्ट कि मैं सबको रीच आउट कर सकूँ बट समटाइम्स इट इज़ कम्प्लीटली ह्यूमनली इम्पॉसिबल आप नहीं कर पाते सो ज़रूरी नहीं है कि आप जिसको रीच आउट कर रहे हैं या जिनको आप जिनसे आप गाइडेंस लेना चाह रहे हैं वो हमेशा आपको रीच बैक करें या वो हमेशा आपके पास वापस आएँ और आपको रिप्लाई करें सो मेक श्योर इस मुसीबत से बचने के लिए हमेशा एक अच्छी कम्युनिटी को ज्वाइन करके रखें एंड यू कैन फाइंड मैनी ऑन फेसबुक ग्रुप्स खास तौर पे एंड इनफैक्ट मैंने अपने इंस्टाग्राम पे एक पोस्ट शेयर की भी थी इस बारे में वेयर आई हैव शेयर्ड अ लॉट ऑफ फेसबुक ग्रुप्स जो कि बहुत अच्छे हैं फॉर राइटिंग पर्सन या राइटिंग फ्रीलांसर्स जहाँ पे आपको हर तरह की हेल्प मिल सकती है तो जो हेल्प आपको यहाँ से नहीं मिल रही और जिसकी आपको उम्मीद भी नहीं है कि शायद दे वुड गेट बैक टू मी और नॉट टू मेक श्योर कि आप उस सोर्स पे रिलाई करना छोड़ें और अब बाकी चीज़ों पे आप जाएँ आपको यूट्यूब पे बहुत सारा स्टफ मिल जाएगा आपको गूगल पे बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी आपको स्किल शेयर पे आपको लिंक्डइन पे बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी और अगेन यू कैन इफ़ यू आर पार्ट ऑफ अ गुड कम्युनिटी तो आपको उस कम्युनिटी से बहुत कुछ सीखने को मिल जाएगा दिस इज़ हाउ मैम इट्स वन मोर क्विक क्वेश्चन एक क्वेश्चन ये कि जो है 20% जो सर्विस चार्ज होते हैं उसका मैंने देखा था समवेयर दैट डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है अपवर्क पे लाइक द चार्जेस 3.4%, सो हाउ डू वी गो अबाउट दैट लाइक 20% से 3.4 पे आने पे and एक्चुअली 20 से 3 डायरेक्टली नहीं आता है इट कम्स विद लेवल्स फॉर एग्जांपल कि आप बिल्कुल बिगिनर हैं जब बिल्कुल आपने स्टार्ट आउट किया तब आपसे हमेशा 20% ही कट ऑफ होगा बट जैसे जैसे आपके लेवल्स बढ़ते हैं एंड आई गेस इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग मे बी टॉप रेटेड या वहाँ पे जाके इन लेवल्स पे जाके आप जैसे जैसे लेवल अप कर रहे होते हैं वैसे वैसे वो परसेंटेज कम होते होते 3 to 4% पे आ जाती है दैट इज़ हाउ इट वर्क्स लेकिन जब आप स्टार्टअप करेंगे तब हमेशा आपको 20% देना ही पड़ेगा यहाँ भी और फाइवर पे भी और बाकी जितने प्लेटफॉर्म्स हैं उनका मुझे नहीं पता कि उनकी परसेंटेज कितनी होती है बट यू हैव टू गिव देम सम ऑफ योर कमीशन और फिर वो आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे आप लेवल अप कर रहे हैं आप जितना ज़्यादा उनके प्लेटफॉर्म पे कंसिस्टेंट होकर रह रहे हैं तो ऑब्वियसली दे आर गोइंग टू वैल्यू यू कि ये हमारा एक अच्छा कस्टमर है कि ये एक हमारा एक अच्छा यूज़र है जो इतनी देर से हमारे प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहा है तो वो आपको इस तरह से रिवॉर्ड करते हैं कि वो आपकी परसेंटेज को कम करके जाते हैं और फिर मिस अगर अगेन एक ऐसा हाँ ओके एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसमें थोड़ा सा लाइक इट्स सॉर्ट ऑफ अ बिग प्रोजेक्ट थोड़ा सा उसमें तीन चार चीज़ें आ जाती हैं सो एक बिगनर के लिए अगर वो जो पेमेंट है वो पार्ट्स में इंस्टॉलमेंट्स में ठीक है सो डज इट गेट्स लाइक 20% कट फ्रॉम ईच ऑफ दैट No, 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 पेमेंट no, या no, फिर no, होल ऑफ no, द not from age. No, I mean कंप्लीट प्रोजेक्ट की जितनी पेमेंट सेट हुई होगी वो उसी में से 20% जाएगा आपके हर
माइलस्टोन में से उसको कट नहीं करेंगे. Okay, thank you. One more suggestion to all of you. Please go out and check my Instagram page. इसलिए नहीं, but I want you to be there. Just इसलिए कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं आप लोगों के साथ obviously because of the time limitation यहाँ पे share नहीं कर सकी, but I have shared all of them on my Instagram. जैसे यहाँ पे I have shared so many free courses. अगर आप freelancing सीखना चाहते हैं, content writing, copywriting, कुछ भी, like recently I shared this one, 5 free courses to learn freelancing. और वो ऐसे प्लेटफॉर्म्स के कोर्सेज हैं जो कि पेड प्लेटफॉर्म्स हैं. वैसे तो वहाँ पे जितने भी कोर्सेज हैं वो पेड होते हैं, बट उनमें कुछ कोर्सेज समटाइम्स वैसे छोड़ देते हैं जिनको वो अनलॉक कर देते हैं या फिर जिनको फ्री कर देते हैं. सो यू हैव टू अवेल दोज अपॉर्चुनिटीज़. और इसी तरह बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि ऑब्वियसली मैं शेयर नहीं कर सकी. सो आई वुड सजेस्ट यू टू गो ऑन माई पेज एंड यू कैन सी सो मेनी थिंग्स. अगर आप शुरू से लेके अब तक पढ़ेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी. whether it is about portfolio, whether it is about your experience, या उसे कहाँ से सीखना है, कैसे सीखना है, वो सारी चीज़ें मैंने बहुत अच्छे से वहाँ पे कवर की हुई हैं in all my posts. This is the page, so you can just go there and check it out. And let me know if you have any more questions. I would like to answer. I hope your all questions have been answered. So that brings us to the end of the this informative webinar. We hope that through this webinar now you can all make your mark in the freelancing and excel professionally. I'd like to thank our energetic speaker for her precious time. Learning from you, ma'am, was no less than an achievement. I wish everyone good luck. Thank you for joining us. You may. Thank you so Thank much, you so ma'am. much. Thank you so much. Thank you. Yes. Thank you for the time.